journey of approximately, I'll say 26 years, basically. It's a professional journey. Started all my, education from Delhi itself. I have done my BCom honors, then advanced course in marketing management, then MBA from All India Management Association, and then I became a Google certified digital marketer. So started my journey, professional journey from the Minda Industries Limited. Then I switched to Murugappa Group, then LML, then SKF. SKF is a Swedish worldwide #1 organization. Then 3M. 3M is again a Fortune 500 organization. And finally landed up at Steelbird High-Tech India Limited. So Steelbird is a group of companies which is diversified into the auto components, into the entertainment business, into the your real estate business, and definitely helmet and accessories business, and lot of other companies. Basically, we are into wellness also. We are into cafe business also. Today, if you'll talk about the Flying Saucers Cafe and thought businesses also, so we are into that also. Plus, we are manufacturing close to 5,000 engineering components, and we are exporting to more than 55 countries. So whenever everybody talks about the Steelbird, they talk about the helmet. So we are a Steelbird BFA, basically, because BFA got bankrupt and we have to take a lot of money from the BFA. So we took over that organization so many years back, and we become Steelbird BFA worldwide #1. But people doesn't know that Steelbird is such a diversified group, basically. So as Jaspreet ji has already shared with you that we are into the entertainment business, we are into the real estate business, we are into the engineering business, we are producing a lot of albums, and that is all our infrastructure and all in-house technologies, and we are selling to a lot of channels. So a lot of interesting things we are doing, plus we are having our own online company also, that is a YouShopper based at Panchkula. So it's a very diversified organization, and we are into the wellness business also. So I just want to say that from the last 26 years of my experience, which has started from a very grassroots level and ended up to this level, and we are continuing. What I feel that if we talk about the channel business, retail business we are talking about, your biggest strength is the addition of the network, which I feel we must always carry on with your existing channel. I'm talking about the distribution channel first, where we are talking about the distributors, dealers, retailers, and a lot of other channel associates. So my agenda is that whenever you are talking about the business growth in a retail panel, it is very, very important to access that you are connected to all your channel partners. In most of the organizations, I have seen that people always talk about the top line and bottom line, basically. But what I say, it's not about only top line and bottom line. Whenever you are analyzing your business, it's very, very important to understand that whether your existing connections are expanding or not. Suppose today you are talking about the number of dealers, number of retailers. Are you being expanded into that network or not? Simultaneously, are you being able to retain your old associates? Because whenever we analyze top line, we see that overall number of business we have done X number of delta. But whether we have lost our old associate, old partners, or we are generating business through them, we are not being analyzed in many of the organizations. So my point is, please stay connected with your existing network. Either it is a retail network or a semi-wholesaler or a distributor network, plus add on to your network expansions so that your overall volume will always grow. Secondly, what I also say that apart from networking, are you building a trust with your team, and are you adopting the technology? That is also very, very important, because if you'll see 15 years, 20 years down the line, there was a very traditional structure of doing the business, that you have appointed some of your channel partners in your geographical locations, and then you keep on pressurizing them that, okay, I want this number, I want to grow in this number. But today, whole scenarios has been changed. Today, we are talking about what kind of technology we have adopted
with your channel partners, have you divided the geographical areas basically? Have you divided into the district and taluka level? What kind of potential you are analyzing in that area? Have you done the due diligence of your said parties? Whenever you are talking about the cross selling, are you looking for new channel or new areas where you can expand your business? Are you thinking in a parallel way? It's not about a straight line thinking. पहले हम जब भी बात करते थे बिजनेस की तो हम हमेशा ये बात करते थे कि हम एक स्ट्रेट लाइन में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, सेमी होलसेलर्स हैं, हम उन्हीं से बिजनेस करेंगे। आज की डेट में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्रॉस सेलिंग फंक्शंस की। आज हम बात करते हैं कि उस एरिया में क्या हम नई नई अपॉर्चुनिटीज वहां पे ढूंढ सकते हैं। बिकॉज टुडे आई एम टेकिंग केयर ऑफ द रिटेल बिजनेस, OEM बिजनेस, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस, एक्सपोर्ट्स बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। तो ये जो मेरा पूरा पोर्टफोलियो रहा लास्ट 26 ईयर्स का, वो बहुत सारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में रहा। एंड व्हाट आई हैव सीन की बिगेस्ट प्रॉब्लम जो बिजनेस में आती है वो ये आती है कि हम सब लोग बहुत स्ट्रेट सोचते हैं, और जब हम उसको पैरेलल सोचना स्टार्ट करते हैं तो हम न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ते हैं अपने ही ज्योग्राफिकल लोकेशन में, और हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं बाय गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। आज की डेट में ये जरूरी नहीं है कि आप एक्स प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको एक्स प्रोडक्ट से रिलेटेड ही एसोसिएट पार्टनर ढूंढना चाहिए। आप हो सकता है कि वाई, जेड और दूसरे प्रोडक्ट एसोसिएट से रिलेटेड पार्टनर्स भी वहां पे एक्सेस कर सकते हैं, और वहां पे आप अपने बिजनेस को अनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैटर आता है कि क्या हम टेक्नोलॉजी अनेबल्ड है आज की डेट में? क्योंकि आज की डेट में जैसे जैसे आपके बिजनेस एक्सपेंशन हो रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो क्या हमने उस तरीके के सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट किए हुए हैं कि हम उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए सारे डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, सारे के सारे कंपटीशन ट्रैकिंग कर रहे हैं, सारे के सारे जितने भी हमारे पीस हैं उन पे हम वर्किंग कर रहे हैं, सारे के सारे जितने भी हमारे एरियाज ऑफ न्यू डायरेक्शंस हैं उन पे हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो टेक्नोलॉजी का आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, चाहे वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्रॉस फंक्शनल बिजनेस आप कर रहे हो। तो व्हाट आई फील कि one is the networking, one is your trust level, one is building your team and motivating them is also very very important। क्योंकि आज की डेट में अगर हम टीम को अपनी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज नहीं करते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आप बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर पाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ मेंटर रादर देन अ बॉस। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने हमेशा ये फील करवाया है लोगों को कि भाई ठीक है, यहाँ पे कोई भी बॉस नहीं है, सारे के सारे लोग जो हैं वो इक्वली एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे हैं, अपना काम करना चाहते हैं, और वी आर हियर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड टू रिड्यूस देयर रोड ब्लॉक्स। तो हमारा पर्पस सिर्फ यही रहता है कि उनके जितने भी रोड ब्लॉक्स हैं उनको दूर किया जाए, जो भी विजन है या डायरेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन की वो सेट की जाए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी डिफाइन की जाए, और उस डायरेक्शन पे सारी की सारी टीम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़े, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में बहुत बेनिफिट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे मैं डिस्कशन करना चाहता हूं कि सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं या लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं या बहुत सारे सेमिनार्स में बहुत लर्निंग्स भी आती हैं, उनमें कई चीजें मैंने देखी है कि जनरली पीपल टॉक अबाउट द टॉप लाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे रेवेन्यूज कहाँ पे पहुंच रहे हैं, नंबर्स हमारे कहाँ पे पहुंच रहे हैं। बट अगर आप कोविड के बाद की सिनेरियोज की बात करें तो मेरे ख्याल से ग्लोबली ये सिस्टम बहुत चेंज हो गया। आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी टॉप लाइन कहाँ पे जा रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट बिजनेस यू आर डूइंग इज अ सस्टेनेबल बिजनेस, is a profitable business for you and for your channel partners। अगर आप पिछले 2 सालों में देखेंगे तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत हिट हुई हैं, ऑल्दो सबकी टॉप लाइंस बढ़ी भी हैं बहुत ऑर्गेनाइजेशन की, बट उसके बाद भी अगर आप उनकी बैलेंस शीट से एनालाइज करते हो तो आप देखते हो कि उनके बॉटम लाइन कहीं ना कहीं हिट हुई है। तो मेरा हमेशा ये बिलीव है कि आपकी टॉप लाइन
बढ़ाना तो खैर हमारा काम है ही ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन ये एक सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए। तो ड्यू डिलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द चैनल पार्टनर्स। प्रॉफिटेबिलिटी इज द की टू दी सक्सेस, क्योंकि आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिटेबल है तो आप टेक्नोलॉजीज भी अडॉप्ट कर सकते हो, आप न्यू डायरेक्शंस में भी मूव कर सकते हो, आप R&D में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो, आप अपनी टीम को इंसेंटिवाइज भी कर सकते हो, एंड आप अच्छे टैलेंट के साथ एक सही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। तो ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये स्टार्ट हुआ बेसिकली बहुत ही, मैं कहूँगा, ग्रास रूट लेवल से, मिंडा इंडस्ट्रीज से, आज से 25-26 साल पहले। एंड तब से बहुत ग्रास रूट लेवल से मैंने अपनी जर्नी की स्टार्ट की, और फ्रॉम दैट लेवल आई केम अक्रॉस टू डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटर्स पे हम लोग वहां पे आए। लेकिन मैंने हमेशा एक चीज जो फील की, वो ये फील की कि ऑर्गेनाइजेशंस जितना भी अपने एम्प्लॉयज पे ट्रस्ट करती है, और टीम बिल्डिंग में हम लोग जितना भी बिलीव करते हैं, उतना ही आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। आज की डेट में डायनेमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन के टेक्नोलॉजी के साथ साथ डायनेमिक्स भी चेंज हो रहे हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो लोगों को अच्छे टैलेंट को रिटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो लोगों को ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो पिछले 20 से 25 सालों में जो बिजनेस के डायनेमिक्स हैं, वो सारे के सारे डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं। एंड बीइंग द ऑर्गेनाइजेशन, आज हम ये फील करते हैं कि वी आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। हम सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वी आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं पे भी आपका कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को लेके आप किसी भी मार्केट में जाते हैं, उस प्रोडक्ट को लेके आप किसी भी चैनल में एंट्री करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द कस्टमर, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या आप एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हैं। अगर उसकी रिक्वायरमेंट एक्स के बाद वाई की भी है और जेड की भी है, तो क्या आप अपने सर्विसेज, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से आप वो उसको सर्विसेज दे सकते हैं। तो डेफिनेटली जो है ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से ग्रो करती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक टच करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की। अगर हम बात करें, ऑल्दो अभी हमने एक जनरल रिटेल बिजनेस ग्रोथ की बात की, तो एज अ स्टील बट बेसिकली हम लोग बहुत बड़ा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, रिटेलर्स का। देन वी आर ओपनिंग एक्सक्लूसिव शॉपीज ऑल्सो पैन इंडिया। आज की डेट में करीबन हमारी 75-80 एक्सक्लूसिव राइडर्स एट शॉप्स हैं, जहाँ पे आपके सारे हेलमेट एंड एक्सेसरीज वहाँ पे पूरे डिस्प्लेज होते हैं। और इसके अलावा हम लोग इस नेटवर्क को उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 साल में 500 प्लस नंबर्स पे ले जाएंगे। तो दैट इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द डोमेस्टिक मार्केट इन विच वी आर डूइंग अवर एक्सपेंशंस। तो हम अपने प्रोडक्ट को आने वाले टाइम में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करती है और किस तरीके से उस प्रोडक्ट को पोजीशन करती है मार्केट में, ये भी मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम दी ट्रेडिशनल सेल्स। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ट्रेडिशनल सेल्स इज नॉट दी ओनली वे ऑफ द बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो मैं कहूंगा कि आने वाले टाइम में इंडिया के पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। रीजन बीइंग है कि अगर हम प्री कोविड बिजनेस सिनेरियोज देखें, तो चाइना 55 to 60% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लोबल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता था। इट वाज सच अ बिग बिजनेस नंबर। if you talk about the raw material production, if you talk about the finished good production, if you talk about the CKD business, तो पिछले 2-2.5 सालों में वो सेंटिमेंट्स काफी चेंज हुए हैं। बट आज की डेट में अगर कोई ये कहे कि हम अपनी डिपेंडेंसी वहां से हटा के और पूरी किसी दूसरी कंट्री पे ले जाना चाहते हैं, तो वो इतना पॉसिबल नहीं है, इजीली पॉसिबल नहीं। बट स्टिल आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप उस 55-60% का 5% भी अपनी कंट्री में ले पाते हैं, तो वो एक कितना बड़ा नंबर हो। तो दैट मीन्स कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। और अगर आप रीसेंट डाटा भी देखें, बजट में भी देखें, एनालिसिस देखें, तो आप देखेंगे कि हम लोग का एक्सपोर्ट कितनी तेजी से बढ़ा है और उसके कितने फ्यूचर पोटेंशियल्स हैं।
तो दैट मीन्स कि मैं हर एक को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर उस ग्लोबल बिजनेस का एडिशनल 5% भी आपको मिलता है तो नंबर इतना बड़ा होगा कि आपको शायद अपनी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को एक्सपेंशन मोड पे ले जाना पड़ेगा, और ग्लोबली आप इस बिजनेस में अच्छी क्वालिटी के साथ और अच्छे सेंटिमेंट्स के साथ बहुत तेजी से आप ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट मैटर रहा कि डिजिटाइजेशन का। तो ये मैं फील करता हूँ कि जो डिजिटाइजेशन है वो आज की डेट में सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, आपके लाइफ के हर पार्ट में आपके साथ आ गया है। आज की डेट में अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से आपका यूथ ऑन एन एवरेज, जो लास्ट स्टडी आई, 8 आवर्स पर डे मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन सेल्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी की, कि उस टेक्नोलॉजी को आप यूज करके, जिसमें आपका पूरा यूथ, आज आपकी 40 प्लस की काफी जनरेशन जो 50 तक है, वो उस पर काफी ज्यादा अटैच्ड है। आप देखिए आज की डेट में सोशल डिजी मीडिया, आपके जितने प्रमोशंस हैं वो सारी की सारी चीजें भी चेंज हो गई हैं। आज की डेट में आपके जितने भी प्रमोशंस होते हैं मैक्सिमम आप सोशल डिजी मीडिया पे ही डालते हैं, क्योंकि ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव है, इसकी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज कि आज की डेट में जो आपके ट्रेडिशनल मेथड थे टेलीविजन के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, यूथ उससे बहुत दूर है। आप कभी भी एक सर्वे करेंगे या अपने घर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे या यूथ कितना कम टाइम टेलीविजन पे स्पेंड करते हैं, रादर उससे ज्यादा वो कितना ज्यादा टाइम मोबाइल पे या सोशल मीडिया या इंस्टा पे या फेसबुक पे या दूसरे जो आपके पोर्टल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे स्पेंड करते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आप प्रमोशन करना चाहते हैं तो मेरा हमेशा ये ऑर्गेनाइजेशन के सजेशन रहता है कि आप मैक्सिमम चीजें स्पेंड करें अपना सोशल मीडिया पे, टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, टू प्रमोट योर थॉट्स, टू शेयर योर व्यूज, टू शेयर द USPs of your product, or I think you are going to get a big benefit with the minimum expenditure in compared to electronic media. तो इस हिसाब से आप देखिए टेक्नोलॉजी भी सारी की सारी चेंज हो रही है, और ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी ग्लोबल मीडिया में चेंज हो रही है। बट स्टिल आप देखिए आने वाले टाइम में भी ऑफलाइन जो मीडिया है या ऑफलाइन जो मार्केट है उसका बिजनेस शेयर हमेशा बहुत ज्यादा रहेगा। इसका मैं आपसे एग्जांपल शेयर करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला आज से 3-4 साल पहले कि ऑनलाइन मीडिया आ गया। आई थिंक 5 साल पहले ऑनलाइन सेल्स एंड ऑनलाइन जो हमारे प्लेटफॉर्म्स थे बहुत तेजी से बढ़े थे, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनका ये कहना था कि अरे आने वाले टाइम में तो इसका मतलब ऑफलाइन सेल्स तो खत्म ही हो जाएगी। तो मेरा उसमें ये कहना है कि ऑफलाइन सेल्स हमेशा रहेगी, क्योंकि आप देखो जब आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हो तो डेवलप्ड कंट्रीज जो कि पूरी मैच्योर्ड इकोनॉमीज हैं वहां पे भी आपके बड़े बड़े शोरूम्स हैं। टुडे विल गो टू यूएसए, यूके, यूएई, आप देखिए वहां पे कितने बड़े बड़े शोरूम्स हैं एंड स्टिल दे आर रनिंग। जबकि वहां पे ऑनलाइन जो बिजनेस का शेयर है वो क्लोज टू 15% प्लस पे जा चुका है और क्लोज टू 20% प्लस इन सम ऑफ द कंट्रीज। तो इंडिया में भी जो ये शेयर है मैं कहता हूँ हो सकता है आज ये 8 या 9% हो सकता है ये आने वाले टाइम में 20% पे जाए। बट आप ये देखो कि स्टिल आपका 80% या 82% ऑफ द मार्केट शेयर ऑफलाइन चैनल में ही रहेगा। तो ये मार्केट इतनी बड़ी है, आपका यूनिवर्स इतना बड़ा है कि जहां पे सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए जगह है। बट ये है कि विद द ड्रिवन टेक्नोलॉजी टू बी मोर कॉम्पिटिटिव आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पे ही विजिबल रहना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि ठीक है मेरे को एक्सपोर्ट सेल्स में भी जाना है, यस यू हैव टू बी देयर। If you have to be there in the government business, yes you have to take the share in that also. अगर आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस में जाना है, रिटेल बिजनेस में जाना है, ऑनलाइन बिजनेस में जाना है, ऑनलाइन में भी आपको डाइवर्सिफाइड बिजनेस करना है, यू आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन रिटेल और ऑनलाइन होलसेल बिजनेस, तो उसमें भी आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ओईएम बिजनेस में भी आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ये देखनी पड़ेंगी कि कहाँ कहाँ पे आपके एक्सपेंशन मोड्स चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हैं, कहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की डिफरेंट यूटिलिटी आप अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हमेशा बनी रहेगी, आपके नंबर्स हमेशा बढ़ते रहेंगे, आपकी सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा रहेगी,
आपकी मैन पावर हमेशा आपके साथ जुड़ी रहेगी। और अगर आप उन्हें ये फील कराते हैं दैट यस यू आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और आप हमेशा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप हमेशा उनको इंसेंटिवाइज करवाते हो, तो डेफिनेटली आज की डेट में भी मैं कह सकता हूँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आपका एट्रिशन रेट बहुत ही कम है। तो व्हाट आई ऑलवेज फील कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं दे शुड ऑलवेज फील कि दे आर द असेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर द हायर एंड फायर और फॉर द लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं प्रोफेशनल जर्नी को लेके। और हमेशा एक चीज मैंने हमेशा सीखी है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज हमेशा ही होती है, वो हमेशा आपको ही डिसाइड करना लाइफ में कि आप किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। सक्सेस की डेफिनेशन हमेशा ये डिफाइन नहीं करती कि आप प्रोफेशनली कितने सक्सेसफुल हैं। आज की डेट में इफ एनी पर्सन इज अर्निंग वेल और वो अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पैसे कमा रहे हैं, वो अपना फैमिली को टाइम दे रहे हैं, वो आज की डेट में अपने जो एम्बिशंस हैं, सोशियो एम्बिशंस, अगर वो पार्टी करना चाहता है, अगर वो रोम अराउंड करना चाहता है, अगर वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, अगर वो एडवेंचरस जर्नी पे जाना चाहता है, तो मेरे हिसाब से वो एक सक्सेसफुल पर्सन है। तो जो सक्सेस की डेफिनेशन है उसको विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बीइंग दी सक्सेसफुल, ये जो डेफिनेशन है ये हमेशा आपको ही डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हो या नहीं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग क्या आपके बारे में कहते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है, अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करें, सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स अगले 10 साल में इंडिया में आने वाले हैं। जिस हिसाब से आपकी प्रोग्रेस हो रही है, जिस हिसाब से आप स्टार्टअप्स की बात कर रहे हो, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेरी नजर में वो सारे लोग सक्सेसफुल हैं जो उसको एक बैलेंस्ड वे में ले जाते हैं। तो सक्सेस स्टोरी की अगर हम बात करें तो यस, मुझे ऐसा फील होता है कि लाइफ में सबके जो चैलेंजेस हैं वो बहुत रहते हैं। लाइफ इज चेंजिंग, कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। आज की डेट में आप एक्स जगह पे काम करते हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो वहां पे आप प्रॉब्लम्स फेस करते ही हो। दूसरी जगह आप जाते हो या दूसरे स्टार्टअप में जाते हो तो आपकी प्रॉब्लम एक्स से वाई हो जाती है। मे बी यू विल नॉट बी फेसिंग द सेम प्रॉब्लम विच वर यू फेसिंग इन द एक्स, बट आपकी जैसे ही वो प्रॉब्लम चेंज होती है तो वहां पे भी आप स्ट्रगल करते हो, वहां पे भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप उनको ओवरकम करते हो और उस पर आप विन करते हो। तो हमेशा एक एटीट्यूड ये रखना कि ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी हम उन प्रॉब्लम्स को फाइट करेंगे, हम उन प्रॉब्लम से कभी घबराएंगे, हम जो भी लाइफ के डायनामिक्स हैं उसके हिसाब से हम अपनी चीजें चेंज करते रहेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप विनिंग के लिए किसी भी सिचुएशंस में स्ट्रगल कर रहे हो और आप वहां से लर्निंग लेके अपनी चीजें चेंज करते जा रहे हो, एंड देन यू बिकम सक्सेसफुल इन द लाइफ, इन योर आइज, इन योर फैमिली। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कभी भी मेरे ख्याल से लाइफ में तो कभी किसी को पीछे हटना नहीं चाहिए और कभी भी किसी प्रॉब्लम से उसको डरना भी नहीं चाहिए और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड ट्रस्ट में ये मेरा बिलीव है, क्योंकि मेरा भी करीबन 26 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस रहा, ग्लोबली इतने पोर्टफोलियोज पे मैंने काम किया, डोमेस्टिकली मैं आपको बताऊंगा तो इंडिया में शायद मैंने एक एक विलेज घूमा हुआ है, इस टाइप की मैंने ट्रेवलिंग की हुई है। 25% ऑफ द वर्ल्ड मैंने ट्रेवल किया और मैंने हमेशा देखा है कि सक्सेस और अनसक्सेसफुल उनके बीच की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि अगर आप में वो एटीट्यूड है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है, मेरे को अपने जितने भी टारगेट्स मैंने डिसाइड किए हैं लाइफ पे जो टाइम ऑन टाइम चेंज होते रहते हैं उनको मुझे अचीव करना है, तो आप उनके पीछे लगे रहो। आप नई लर्निंग्स लेते रहो, नई चीजें अडॉप्ट करते रहो, जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको आप ठीक करते रहो। तो मुझे लगता है वन फाइन डे यू विल बी सक्सेसफुल। और ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बट यस इट इज पॉसिबल। दूसरी चीज जो मैं बात हमेशा करता हूँ वो मैं बात करता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस की, कि हमारे लिए हैप्पीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम प्रोफेशनली कितने भी सक्सेसफुल हो, अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पाते तो मेरे ख्याल से उस सक्सेस का कोई बेनिफिट नहीं। जितने भी मेरे प्रोफेशनल सेमिनार्स हैं उसमें मैंने हमेशा कहा है, इफ यू आर वर्किंग 18 आवर्स 24 आवर्स देन आई डोंट थिंक यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। रीजन बीइंग कि आप ये किस लिए कर रहे हो। आपको हमेशा अपनी चीजों को बैलेंस को डिफाइन करना पड़ेगा। ओके 80% ऑफ द टाइम आई विल गिव टू माय ऑर्गेनाइजेशन फॉर माय प्रोफेशनल जर्नी, बाकी 20% टाइम में आई एम शेयरिंग दैट टाइम विद माय फैमिली, विद दी CSR एक्टिविटीज। जिस सोसाइटी में आप लिव करते हो, क्या उस सोसाइटी के लिए आप कुछ काम कर रहे हो? क्या आप कोई CSR एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो? फॉर दी पीपल आर यू डूइंग समथिंग? क्या आप एंगेज हो कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबल चीजों में? क्या आप एनवायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो? जिस एनवायरमेंट से ही आपको सब कुछ मिल रहा है। ओनली प्रोफेशनल सक्सेस इज नॉट अ सक्सेस फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप अपने टाइम को एक डिवाइड करते हो कि ठीक है 80% ऑफ द टाइम मैं डिवाइड करूंगा फॉर माई प्रोफेशनल जर्नी, फॉर माई प्रोफेशनल सक्सेस, फॉर माई प्रोफेशनल पीपल, एटलीस्ट 20% ऑफ द टाइम यू मस्ट डिवाइड फॉर दी अदर एक्टिविटीज, जहां पे आपको पता चले कि यस दैट इज द क्रक्स ऑफ द लाइफ, और फिर आप कह सकते हो यस आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। वन मोर इंपॉर्टेंट मैटर जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि यू आर नेवर सेटल्ड इन योर लाइफ। दिस इज माई एक्सपीरियंस। जब आप स्कूल में होते हो तो पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि ओके आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और उसके बाद आप सेटल हो जाओ। बट आप मुझे बताओ उनमें से कौन भी एक ऐसा पर्सन है जो बोलेगा कि बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आए तो आप सेटल हो गए? उसके बाद फिर आता है कि आपको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, देन यू विल बी सेटल्ड इन योर लाइफ। फिर आप कॉलेज में जाते हो, फिर आप कोर्स को लेके अपने सेटलमेंट ढूंढते हो, देन फिर आप जॉब प्लेसमेंट को लेके अपनी सेटलमेंट ढूंढते हो, फिर आप मैरिज को लेके अपनी सेटलमेंट ढूंढते हो, और आप बताओ लाइफ में आप कभी भी सेटल नहीं हो पाते। व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इन माय आईज? मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि यू आर ऑलवेज सेटल्ड इन योर लाइफ। आप हमेशा ही अपनी लाइफ में सेटल्ड हो। आपको किसी के ओपिनियन की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा ये फील करना है कि मेरे आज जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, मेरे आज जो भी पोजीशंस हैं, मेरे पास जो भी आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी रिसोर्सेज मेरे को दिए गए, आई एम सेटल्ड इन दैट, और उसी में व्हाट बेस्ट आई कैन डू, और उसमें फर्दर मेरे को ग्रोथ करके कहां पे पहुंचना है। हर पर्सन के लाइफ के एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट है। Some person want to be entrepreneurs. Some person want to be a president of the organization. Anybody will ask, he'll say, I'll become the CEO of the organization. और सबके अपने अपने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। बट जो भी आपने बेंचमार्क अपने लाइफ में बनाए हैं, प्लीज आप उसको समझो और आप ये डिसाइड करो कि मैं आज सेटल्ड हूँ, मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, मेरे पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें मुझे वे आउट ढूंढना है, और उस वे आउट को ढूंढते हुए मुझे कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, और मुझे लाइफ के हर प्रेरोगेटिव में सक्सेसफुल होना है, रादर देन कि मेरे को 5,000 करोड़ की कंपनी रेवेन्यू है, उसका मुझे CEO बनना है। दैट यू कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ सक्सेसफुल पर्सन ऑफ लाइफ। तो आप आपके साथ आपकी फैमिली बहुत खुश है, आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़े लेवल पे ले जा रहे हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, क्या वो आपसे कनेक्टेड है? क्या वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? क्या वो अपनी चीजें आपसे शेयर करते हैं? क्या उनके पास ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म है कि जहां पे वो अपने आइडियाज आपसे शेयर कर सकते हैं? क्योंकि आप किसी को भी उसके लेवल के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। आई एम द फर्म बिलीवर ऑफ द HR शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आपकी मेंटरिंग होनी चाहिए, जहां पे आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जहां पे लोगों के जो आइडियाज हैं वो सुने जाने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना टैलेंट हूँ, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि मेरे आसपास जो लोग हैं उनमें कितना टैलेंट है। मेरा काम सिर्फ उनको डायरेक्शंस देना है, मेरा काम कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन में रहता है, मेरा काम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मेरा काम उनको विजन दिखाना है, मेरा काम कंपनी की सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है, मेरा काम लोगों की मेंटरिंग की तरफ है, उनकी ग्रोथ की तरफ है। मेरा काम कभी भी ये नहीं है कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन मैं कैसे डिफाइन करूंगा, क्योंकि जब आपके पास इतने सारे ऑपरेशनल लोग हैं जो इस चीज को करना चाहते हैं और वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है,
उनमें आपसे ज्यादा नॉलेज है, तो आप उनको वो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं देते कि वो आए उस प्लेटफॉर्म पे अपना जो टैलेंट है उसको शो करें और रिजल्ट्स दें, एंड बीइंग द लीडर उसका क्रेडिट तो आपको ही मिलता है। अल्टीमेटली किसी भी फेलियर के लिए, किसी भी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फ्रंट लीडर, बिजनेस लीडर की मानी जाती है। तो हमेशा उस तरीके की टीम बिल्ड करना मेरा हमेशा पैशन रहा है, और हमेशा नई नई चीजें सीखना, हमेशा डाइवर्सिफाई करना। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर 26 ईयर्स, इवन आफ्टर सच मच ऑफ एक्सपीरियंस डोमेस्टिक एंड ग्लोबली, जब भी मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूँ तो मेरे को लगता है अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं। और खासकर आज के जनरेशन की जब मैं बात करता हूँ, यूथ की बात करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि उनका जो लेवल ऑफ एग्रेशन है दैट इज वेरी हाई, लेवल ऑफ जो एडाप्टेशन है टुवर्ड्स दी टेक्नोलॉजी दैट इज वेरी हाई, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा है। मेरे को याद है आज से 26 साल पहले जब हम लोग यंग होते थे, तो उस टाइम पे जो जनरेशन गैप था शायद 10 से 15 साल में आता था। आज की डेट में जब मैं यूथ से कनेक्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 5 साल में आपको पता चलता है कि जनरेशन चेंज हो गई। तो नाउ द स्पैन इज ओनली 5 years, maybe in another some years you will say another 2.5 years the time for the generation change. बट आज 5 सालों में जो उनका थॉट प्रोसेस है, जो उनका जनरेशन गैप है, वो हो जाता है। और क्या हम एडाप्टेबल हैं उन चीजों को एक्सेस करने के लिए इन अवर पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन अवर प्रोफेशनल लाइफ। तो हमेशा मैंने उन चीजों पे ही ध्यान दिया है, उन्हीं चीजों के लिए काम किया है। और सबके साथ मैं यही चीजें शेयर करना चाहता हूँ कि आप लाइफ में बहुत ग्रोथ कर सकते हो। मैंने भी जब लाइफ की स्टार्ट की तो मेरा कोई ऐसा एम्बिशन नहीं था कि वन डे आई विल बी द ग्लोबल ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ अ स्टीलबर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो स्टीलबर्ड अगर आज हम बात करें तो हेलमेट में दे आर द पायनियर, वी आर द वर्ल्ड वाइड नंबर 1। जैसे अगर हम डिटर्जेंट की बात करते हैं तो निरमा आ जाता है अपने आप, आ जाता था शायद। तो ऐसे अगर हम हेलमेट की बात करते हैं तो आई थिंक स्टीलबर्ड आ जाता है। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि हम लोग इतने डाइवर्सिफाई हो गए कि हम लोग एंटरटेनमेंट बिजनेस में चल गए। हम बहुत सारी एल्बम्स बनाते हैं, जी टीवी को बेचते हैं, MH1 को बेचते हैं, और ये सारा इन हाउस सेटअप है और ये सब हम लोगों ने खुद सीखा है। हम लोग कैफे बिजनेस में है, हम लोग रियल एस्टेट कंपनी में है, हम लोग ऑटो कंपोनेंट्स में है, एंड वी आर हैविंग सच अ बिग प्लांट्स। और मैं कभी कभी बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मुझे इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिली कि मैं परचेज में रहा, वेंडर डेवलपमेंट में रहा, क्वालिटी में रहा, प्लांट्स में रहा, सेल्स में रहा, सेल्स के जितने पोर्टफोलियोज हैं उनमें रहा, ग्लोबल बिजनेस में रहा, ऑनलाइन में रहा, और सो मेनी पोर्टफोलियोज आई हैव वर्कड विद। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आपको अपने आसपास के लोगों से ही सीखना है, उनको ही नर्चर करना है, उनको ही डायरेक्शंस दिखानी है, और हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। वो ट्रेडिशनल टाइम खत्म हो गया, जैसे बजाज का स्कूटर आता था, हमारा बजाज की एक बार ले लिया और वो 20 साल तक चलता रहेगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। आज की डेट में आपके चेंजेस एवरी डे, थिंग्स आर चेंजिंग, और ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें। और जैसे जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे तो यू विल फाइंड योरसेल्फ कॉम्पिटिटिव एनफ इन द मार्केट, विद इन दी पीपल। तो जहाँ पे बैठ के आप उनसे बात कर सकते हैं। कि आज आप यूथ के साथ बैठोगे तो उसको इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे बहुत इंटरेस्ट है, तो आज आप कोई बहुत ज्यादा ओल्ड टेक्नोलॉजी की उनसे बात नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल माई जर्नी। बस यही कहूंगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, बहुत सारे चैलेंजेस रहे लाइफ में, बट मैं हमेशा ही फील करता हूँ कि मैं बहुत खुश रहा। एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू दी पीपल, थैंकफुल टू गॉड, जिसकी वजह से ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिली। और हमने हमेशा ये कोशिश की कि उसको हम इम्प्लीमेंट करें और ट्रांसलेट करें इनटू द कमर्शियल टर्म्स आल्सो। और टुडे वी आर अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी इन अ ब्रांड, आई विल से वी आर वर्ल्ड वाइड नंबर 1। और बहुत चीजों में हमने डाइवर्सिफाई किया और बहुत अच्छी ग्रोथ हम लोग कर रहे हैं। In terms of commercial numbers also, I'll say we are doing wonderfully well. Even at the time of pandemic, situations were tough for all the manufacturing organization, but still we will be able to sustain, will able to grow. और हम लोग के सारे डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म में भी हम सक्सेसफुल रहे। और
ट्रस्ट में एक ऐसा टाइम आया जब पैंडेमिक के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की हालत बहुत खराब थी, तो हम लोगों ने फेस शील्ड लॉन्च कर दी। तो आप देखिए हेलमेट के सामने वाइजर आता है, तो हमने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। वाइजर के हमारे पास मोल्ड है, वाइजर के हमारे पास प्लांट्स हैं, तो हमने, क्योंकि उस टाइम फेस शील्ड की बहुत जबरदस्त डिमांड थी, तो हम लोगों ने उसमें सारे मैकेनिकल और टेक्निकल चेंजेस करके हेलमेट बंद हो गए, बट फेस शील्ड में वो कन्वर्ट हो गए। और आप देखो जितने भी लोग प्लांट में थे, दे गॉट ऑक्यूपाइड इनटू मैन्युफैक्चरिंग फेस शील्ड। तो कंपनी ने अगर उस पेंडेमिक के टाइम पे 60% ऑफ द टर्नओवर, 70% ऑफ द टर्नओवर की फ्रॉम दैट फेस शील्ड ओनली, तो आप समझ सकते हो कि हम लोग सस्टेन भी किया, हम लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया, और नाउ अगेन वी आर बैक ऑन ट्रैक। और मुझे लगता है बहुत जल्दी हम सब लोग इस पेंडेमिक से बाहर निकलेंगे, और वी आर मूविंग टूवर्ड दैट। और अपॉर्चुनिटीज हर एक के लिए हमेशा हर सिचुएशन में है, और वो हमेशा रहेंगी। ओनली मैटर इज कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, कैसे आइडेंटिफाई करते हो, और कैसे आप उसको प्रोसीड करना चाहते हो। So this is my short layout of professional and personal journey of my life, and I'm very hopeful that one fine day we'll be having a turnover of 10,000 crores, Steelbird group of companies. और पायनियर तो हम हैं ही खैर इस फील्ड में, बट डाइवर्सिफिकेशन में भी आई एम वेरी होपफुल कि हम न्यू न्यू बिजनेसेस में और एंट्री लेंगे और उसको सक्सेसफुल बनाएंगे। So this is the only thing I want to say, and being summarizing a very simple things, I'll always say to the people कि don't run after only for professional success. अगर आप प्रोफेशनल सक्सेस हो लेकिन आप अपने लाइफ के बाकी पैरामीटर्स में खुद को सक्सेसफुल नहीं पाते, तो इन माई आईज पर्सन इज नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोफेशनल सक्सेसफुल हो, कमर्शियल सक्सेसफुल हो, अपनी लाइफ में आप सेटल्ड हो, आप अपने सारे के सारे जो आपके हॉबीज हैं आप उनको पूरा कर पाओ। अगर आप एडवेंचरस हो तो आप बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, अगर आप एक पार्टी मैन हो तो आप बहुत सारी पार्टीज करो, और आपको फन एंड एंटरटेनमेंट हमेशा होना चाहिए, फैमिली के लिए टाइम हमेशा होना चाहिए। जब ये सारा बैलेंस आप बना लेते हो तो आप कह सकते हो यस आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द हेल्थ, जिसमें मैं एटलीस्ट बहुत ध्यान देता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ पे जरूर ध्यान दो। आप चाहे योगा करो, चाहे आप एरोबिक्स करो, चाहे आप जिम में जाओ, व्हाटएवर एक्टिव, चाहे आप रनिंग करना चाहते हो, बट ट्रस्ट मी, आज कोई भी, आप खुद सोच के देखो, बीमार होता है तो सबसे पहले वो क्या कहता है? आइदर इट इज अ सीईओ और अ एमडी और अ ग्लोबल प्रेसिडेंट और अ कंट्री प्रेसिडेंट। सबसे पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट होकर एक ही चीज बोलता है कि भाई मुझे सबसे पहले ठीक करो। आप कहीं पे भी हो, अगर अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आपके किसी भी सक्सेस के कोई भी मीनिंग नहीं है, ना आपके लिए ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेगी? आप 6 महीने के लिए अगर आप कहते हो कि मैं फिट नहीं हूं, आप कितने भी वैल्यूएबल हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेगी? वो कहेगी ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द रिप्लेसमेंट फॉर द पर्सन। कब तक हम कमर्शियल्स पे हिट ले सकते हैं? आप कभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बता पाओगे कि मैंने 20 साल 25 साल आपके लिए बहुत काम किया है। आपके फैमिली वाले क्या बोलेंगे? वो भी हमेशा आपके लिए वरीड रहेंगे। तो आपके लिए ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर। तो जब हम सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं, क्योंकि मेरे को ये बहुत बुरा लगता है जब भी मैं आजकल जितने भी सेमिनार्स में या कॉलेजेस में या प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूँ, हमारे स्कूल और कॉलेज में एक ही चीज सिखाई जाती है कि हाउ टू बी नंबर वन, दैट्स इट। हाउ टू अर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, what is the amount of turnover your organization will be having, what kind of CTC you will be getting after this age. At the age of 24 my package will be 40-50 lakhs, when I'll reach 30 my package will be 60-70 lakhs and XYZ. आप किसी से भी बात करो, this is the answer you will get from the maximum number of people or a participant or from the youth. But that is not the real story of the life.
आपका पैकेज आपका आपकी सक्सेस को कभी डिफाइन नहीं करेगा। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी कर लो, you will never be in a position to enjoy your professional, commercial or personal life. So please have focus on your health. That is the first point. Second point, always ready for the changes. अपनी चीजें आप अडॉप्ट करो, प्रोफेशनली सक्सेसफुल बनो, कमर्शियली सक्सेसफुल बनो, वर्क लाइफ बैलेंस आप करो, और लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप उनको फेस करो विद द ट्रस्ट कि हमें आगे बढ़ना है। हमेशा टीम बिल्डिंग पे आप विश्वास रखो, आपके आसपास जो लोग हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, आप उनसे सीखो और हमेशा लाइफ में अपने आप को अपग्रेड करते रहो। और लाइफ में हर तरीके की सक्सेस टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स your responsibility towards your family, always take care of that, and trust me, you'll be very happy person. Like what I feel, that I am a very happy person. When I talk to 100 people, I straight away ask, are you a happy person? And the kind of response they give, it looks that they are saying that they are happy, but actually they are not. So please, you have to be a happy, successful commercial person. That is the motto of the story. So good sir, good. Yeah, I think आपने सब कुछ कवर कर दिया, 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो हम बात भी कर रहे थे. So I think people have raised the hand that they want to ask, so I'll just open it for the audience. I have a couple of questions to ask, and then anybody who wants to ask or contribute anything, they can raise their hand, so that you talked a lot about building trust, building teams, having the right set of connections and having the right set of networks. होता क्या है कि हमारा environment हमें बहुत impact करता है. We are all driven by our environment. तो बड़ा कई बार मुझे लगता है कि short sightedness होती है कि लोग, as you said, the focus is on generating more and more wealth, but we forget about planting the trees or sowing the seeds, and we just want to get the fruits. So in your experience, you've been working for last 25 years, how these values have played a very important role in shaping up your career or the growth of your company? देखिए, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमेशा ये डिफाइन करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है और क्या हम अपनी वैल्यूज पे स्टिक कर पाते हैं या नहीं। लेकिन इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यू सी लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आज की डेट में अगर हम टाटा की बात करें, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, तो आपके मन में सबसे पहली चीज क्या आती है कि इट्स अ ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन। जब आप उसके प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्या कभी आपके माइंड में आता है कि उसके प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं कोई डिफरेंशिएशंस होंगे? आप में उस तरीके का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उस तरीके का ट्रस्ट जो है, क्या वो उन ऑर्गेनाइजेशंस ने वो सारे के सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स फेस नहीं किए? बट इट्स ऑलवेज अबाउट योर थॉट प्रोसेस कि आपकी टॉप लाइन क्या सोचती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा फील करता हूं कि उसकी टॉप लाइन ये डिफाइन करती है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। अगर वो ये डिफाइन करती है कि हमें अपने ट्रस्ट पे, अपनी वैल्यूज पे, अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करना है, तो डाउन द लाइन वही मैसेज सब जगह जाता है। तो आपको हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली आपको मिलेंगी जहां पे आप देखोगे कि सबके काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। तो मैं हमेशा ये फील करता हूं कि फैक्टर्स कितने भी डिफिकल्ट हो, अगर आपने अपने वैल्यूज को ट्रस्ट किया है, वो वैल्यूज आज भी हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आज भी उनको अडॉप्ट करती हैं, और जो लोग हैं वो बहुत स्मार्ट हैं। वो हो सकता है आपके फेस पे कुछ नहीं बोले, बट दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। आज पेंडेमिक के टाइम पे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस रही जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को, अपने चैनल पार्टनर्स को हेल्प की। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारे बहुत से चैनल पार्टनर्स रहे जिन्होंने कहा कि वी विल नॉट बी एबल टू अचीव आवर टारगेट्स। दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। तो क्या रहेगा जो हमें टर्नओवर डिस्काउंट्स मिलते हैं या XYZ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स मिलते हैं, उसकी क्या पोजीशनिंग रहेगी? तो वी स्ट्रेट अवे सेड कि डोंट वरी, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। हम कोशिश करेंगे कि कुछ हद तक उसको टर्नओवर से लिंक करें, कुछ हद तक अचीवमेंट से लिंक करें, कुछ हद तक प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक करें। तो देयर इज अ ट्रस्ट इन देयर माइंड कि यस, मेरे कमर्शियल्स भी कहीं ना कहीं सिक्योर है इवन इन दिस पेंडेमिक टाइम। प्लस सोशल सर्विसेज के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वेरी बिग
and they are very profitable organizations, but they have not done anything for the employees. But yes, there are organizations जिन्होंने इन्हीं फैक्टर्स में, इन्हीं सिनेरियोज में अपने एम्प्लॉइज के लिए बहुत कुछ काम किया, सोशल सर्विस के लिए बहुत काम किया, और उस कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्टअप करने के लिए काम किया कि आप डरो मत, कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमेशा आपके साथ है, और जब तक ऐसे टफ सर्कमस्टांसेस रहेंगे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी जॉब स्टेक में नहीं है. यू वोंट बिलीव, वी हैव नॉट फायर्ड इवन अ सिंगल पर्सन. We have not fired even a single person in last 2.5 years due to profitability. Although हमारे organizations के भी profits काफी hit हुए, हमें भी बहुत financial दिक्कतों का सामना करना पड़ा, but yes, we trusted our values. तो it depends upon the thought process of the top leadership, और जैसा leadership सोचेगी वैसे ही वो डाउन द लाइन मैसेज जाएगा, वैसे ही लोग एक्ट करेंगे. और अगर एक ट्रस्ट इस तरीके से, ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज हैं, अगर उनसे ट्रस्ट आप बिल्टअप कर पाते हो, तो मेरे ख्याल से एम्प्लॉइज सिर्फ पैसे के लिए आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशंस नहीं छोड़ते. ट्रस्ट मी, इफ यू आर अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, यू आर अ रीजनेबली गुड पे मास्टर, you are having the stability and people trust in you, even for higher money, for a short term, people will not leave you or your organization. That is what I feel. Great. So as they say, there are certain things they will never go out of fashion. Trust, building relationships, and be genuine is, one of them. So that will always remain there. So yes, I have exactly. One more question, and then I can see there are a lot many, hands already. Okay, Neena ji. So my question is that, कई बार सक्सेस और फेलियर, आई थिंक बोथ आर ओवररेटेड. एनी फेवरेट फेलियर ऑफ योर्स दैट कि आप कुछ टारगेट अचीव करना चाहते थे, न्यू बिजनेस, न्यू एक्सपेरिमेंट्स यू डिड, बट दैट डिडंट रियली वर्क आउट, एंड व्हाट वर द लर्निंग्स फ्रॉम दैट? देखिए, हर एक की लाइफ अगर हम देखते हैं तो उसमें सक्सेस और फेलियर सबके लाइफ में एक्सपीरियंसेस में रहे हैं, तो वो मेरे साथ भी रहा है. मेरा सबसे बड़ा जो फेलियर था, मैं कहूँगा कि मेरे को जब इनिशियल स्टेजेस ऑफ करियर में पूछा जाता था आप कौन सी लाइन में नहीं जाना चाहते, तो मैं सबसे एक ही चीज बोलता था कि मैं सेल्स और मार्केटिंग में नहीं जाना चाहता. मतलब ये जब मैंने 26 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की, मेरे पेरेंट्स भी पूछते थे, कभी फ्रेंड्स भी पूछते थे कि आप क्या नहीं करना चाहते, तो मैंने कहा यार मैं ये सेल्स और मार्केटिंग नहीं करना चाहता. सेल्स इसलिए नहीं करना चाहता, उस टाइम मैं ये सोचता था कि यार इनके पास कोई काम तो होता नहीं, ये अपना बैग उठा के घूमते रहते हैं, उनकी कोई प्रेस्टीज नहीं है. दैट वाज अ थॉट प्रोसेस 26 years बैक एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ माय कैरियर. तो मैंने कहा कि मैं फाइनेंस में चला जाऊंगा, मैं ग्लोबल बिजनेस में चला जाऊंगा बाद में फाइनेंस से रिलेटेड, और ऐसे बहुत सारे मेरे थॉट प्रोसेस थे कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, बट मैं कभी भी सेल्स और मार्केटिंग में नहीं जाना चाहता. एंड ट्रस्ट मी, मैंने जब मिंडा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की तो मैंने परचेज में ज्वाइन की, एंड मिंडा इज अ वेरी वेल रिनाउंड ग्रुप. आज की डेट में ग्लोबली दे आर वर्ल्ड वाइड नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ ऑटो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स एंड दिस. At that time that was not such a big organization, but that was one organization, not Ono, Spark, Minda नहीं था, it was a combined group. तो मैंने परचेज डिपार्टमेंट में स्टार्ट की, और वहाँ एक जनरल मैनेजर होते थे जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता था. मैं बहुत ही जूनियर लेवल पे था. उन्होंने मुझे बुला के पूछा कि यार तुम ना परचेज में ना तुम्हारी पर्सनैलिटी सूट नहीं करती, तो मैं चाहता हूँ कि तुम डिफरेंट डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ. तो मैंने कहा जी देखो, ऐसे मैं वेंडर डेवलपमेंट में जा सकता हूँ, मैं R&D में जा सकता हूँ, मैं क्वालिटी में जा सकता हूँ, मैं प्लांट में जा सकता हूँ, मैं फाइनेंस में जा सकता हूँ, बट मैं सेल्स और मार्केटिंग में नहीं जाना चाहता. तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तुम्हें सेल्स मार्केटिंग में ही जाना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो उसी को सूट करती है, और ये मेरा सजेशन भी है और ये मेरा ऑर्डर भी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सक्सेसफुल बनो, तो तुम्हें सेल्स एंड मार्केटिंग में ही जाना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, it was a failure for me. It's a small example, but it's a failure for me. जो मैं लाइफ में सोच रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं करना, उसी के लिए मेरे को उसमें फोर्स कर दिया गया और मेरे को सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया गया. लेकिन बात वही है कि उसको फिर सक्सेसफुल कैसे बनाया. अब क्वेश्चन ये है कि आप एक सिनेरियो में आ गए, आप चाहते हो वो करना या नहीं करना, वो आपके हाथ में नहीं था.
तो फिर ये सोचा कि चलो ठीक है, अब जब इस प्रॉब्लम में आ ही गए हैं तो लेट्स मेक इट सक्सेसफुल। तो बहुत ट्रेवलिंग स्टार्ट की, बहुत प्रॉब्लम हुई मेरे को। यू वॉन्ट बिलीव, एक महीने में, विद इन अ मंथ, एक महीने में 20-22 दिन की ट्रेवलिंग करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। और आज से 25-26 साल पहले आपके पास इंटरनेट नहीं था, आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, आपके पास मोबाइल नहीं था, तो आपके लिए ट्रेवलिंग वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपके पास उतने नंबर ऑफ फ्लाइट्स नहीं थे, उतने नंबर ऑफ ट्रेन्स नहीं होते थे, आपके ट्रांसपोर्टेशन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था। तो ट्रेवलिंग वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट वो जर्नी शुरू हुई तो वो फेलियर धीरे धीरे सक्सेसफुल जर्नी में कन्वर्ट हुआ। तो दिस इज वन शॉर्ट एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे रिस्क लिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, अनसक्सेसफुल रहे, चेंजेस किए, उसके बाद भी सक्सेसफुल नहीं हुए, बट स्टिल केप्ट ऑन डूइंग समथिंग समथिंग, एंड लास्टली Keep moving. I am in front of you, so I think now I am successful. No, that's really great. I think that's so true, and I think sales and marketing function is one thing which, जैसे आपने कहा कि एक स्टिग्मा क्रिएट हो जाता है, एंड मुझे तो ये लगता है कि पर्सनली हमें सबको ट्रेनिंग लेनी चाहिए उसमें, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी आर सेलिंग आवरसेल्व्स और आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. इफ वी डोंट गेट ट्रेन्ड ऑन दैट, we'll always have this fear factor in our minds which should be taken away. But anyways, so we'll open it for all our members and guests as well. So Rajiv ji, we'll start from you, so we'll keep it quick so that we can cover everybody. Please go ahead. थैंक यू जसप्रीत जी, थैंक यू शैलेंद्र सर, काफी अच्छा लगा आज आपका सेशन। और आज एक चीज सीखने को मिली कि आप अगर अपने बिजनेस में जरूरत से ज्यादा व्यस्त हैं तो आप व्यस्त नहीं, आप अस्त व्यस्त हैं। तो आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है और आपको अपने शौक के ऊपर भी टाइम देना है। तो मेरे ख्याल से एक ये बहुत बड़ी लर्निंग है आज के लिए। सर, मैं दूसरी चीज, एक मेरा जो एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करे, अलग अलग इंडस्ट्रीज में करे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप आदमी को अपने बिजनेस में एक 10 पैर की मकड़ी होना चाहिए, ताकि एक बिजनेस ना चले तो 9 से वो आगे बढ़े, 2 ना चले तो वो 8 से आगे बढ़े, 3 ना चले तो वो 7 से आगे बढ़े, बट उसकी जर्नी इमीडिएट खत्म ना हो, उसको खत्म होने में एक टाइम लगे। पर सर, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये क्या है कि आप जब डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो आप जब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पता लगता है कि पीछे की वो चीज छूट गई है जिस बिजनेस में आप बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका पूरा फोकस एक नई चीज को डेवलप करने में लग जाता है। तो सर, इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, आपने इसमें राजीव जी 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले। पहला आपने पॉइंट ये बोला कि बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए सो दैट कि एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम आपके पास हमेशा ऑप्शंस रहें। आई डू फर्मली बिलीव इन द सेम, इसलिए हमने स्टीलबर्ड ग्रुप को भी काफी डाइवर्सिफाई किया। और अगर आप 3M की बात करें, जैसे मैं 3M में था उससे पहले, इज अ फॉर्च्यून 500 ऑर्गेनाइजेशन, तो 3M इज ऑल्सो अ डाइवर्सिफाइड ग्रुप। आप देखो, स्कॉच ब्राइट है तो आप FMCG में भी हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके, आप मेडिकल लाइन में भी हो। 3M के अगर आप देखें तो स्टेथोस्कोप सेट, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आप हेल्थ केयर लाइन में भी हो, आप कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी हो, क्योंकि आप वीजा स्कैन की मशीन्स बनाते हो, बहुत सारी चीजें करते हो। तो उनके ओवरऑल ग्लोबली अगर आप देखें तो 70,000 प्रोडक्ट्स हैं, 70,000। इंडिया में तो आई थिंक 2,000 प्रोडक्ट ही होंगे शायद इंडियन मार्केट के लिए, बट 70,000 प्रोडक्ट विद 2,500 पेटेंट्स। तो आई से कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्च्यून 500 में 13th रैंकिंग होती थी उस टाइम पे। और आप कहें तो जो यूएस का आपका सेंसेक्स है, वो उसका शेयर डिफाइन करता था 3M का, कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सच अ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने भी अपने आप को डाइवर्सिफाई किया इसी थॉट प्रोसेस के साथ, जैसा आप कह रहे हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम आए तो एटलीस्ट आप सस्टेन कर सको। जैसे आप देखो, इस पेंडेमिक के टाइम पे आपका FMCG प्रोडक्ट्स चलते रहे, आपके मेडिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड जो हैं प्रोडक्ट्स, उन्होंने तो बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा उनके लिए। हॉस्पिटल्स तो ऐसे कि उनके लिए तो बूम था, और डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा, ऑल्दो उन्होंने बहुत मेहनत की, बट एज अ कमर्शियली इट वाज अ बूम फॉर देम, क्योंकि लोग उनको ढूंढ रहे थे कि मैं कितने भी पैसे देने को तैयार हूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प करो। तो डाइवर्सिफाई तो हमें करना ही चाहिए, वट एवर यू फील लाइक कि किन किन एरियाज में आप कर सकते हैं। अब बात रही कि पीछे जो चीज छूट जाती है और जब आप आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन वही आ जाता है, ट्रस्ट एंड टीम बिल्डिंग।
आपने कहा जी अकेला चना बाहर नहीं झोंक सकता, दैट मीन्स अ सिंगल पर्सन कैन नॉट डू ऑल द एक्टिविटीज और वो विन नहीं कर सकता. दिस इज व्हाट आई से, व्हाट आई सेड यू ऑलरेडी, कि हमेशा टीम बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपका काम क्या है, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सेट की, आपने एक बिजनेस सेट किया, अब आपको उसके सारे इन एंड आउट्स पता है. करेक्ट राजीव जी? तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी वाई पर्सन को उसको हैंड ओवर करके आप उसे डायरेक्शंस दिखा सकते हो. आप हमेशा उसे ये कह सकते हो कि तू यहाँ पे ये गलत कर रहा है, यहाँ पे सही कर रहा है, यहाँ पे ये तू चेंजेस करेगा तो यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम. लेकिन जब तक आप टीम बिल्डिंग नहीं करोगे, जब तक आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज नहीं करोगे, मैं तो हमेशा यही करता हूँ, इट्स ऑल अबाउट अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज. ठीक है, एक काम सेट हुआ, एक प्रॉब्लम खत्म हुई, वो किसी एक्स पर्सन को डेलीगेट कर दी, नाउ आई एम आउट ऑफ दैट. मेरा काम सिर्फ क्रिटिकल मोमेंट्स पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ऑपरेशनल रोल्स में मेरा रोल खत्म हो जाता है. तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आपके पास टाइम है कि आप नई डायरेक्शन की तरफ, नए बिजनेस की तरफ सोच सको. और जैसे जैसे आपकी टीम बिल्ड होती जाएगी, आपके पास हमेशा ही टाइम होगा नए नए बिजनेस को सोचने के लिए, और वो टाइम आप अपना डिवाइड करें. मैं आज क्या करता हूँ, मैं भी आज यही करता हूँ. हमारी ऑर्गेनाइजेशन, वी डू अ लॉट ऑफ पार्टीज प्री कोविड. आई एम टेलिंग यू, हम लोगों की अगर आप पार्टीज की बात करें तो हम लोग के आईफा लेवल की पार्टीज, दैट काइंड ऑफ एंजॉयमेंट इज देयर. कि बॉलीवुड में अगर आप आईफा की बात करें और आप हमारी पार्टी में आओगे तो आप आईफा को भूल जाओ. तो ये टाइम कहाँ से आता है? ये टाइम इसलिए आता है कि आपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डेलीगेट कर दी है, लोगों पे ट्रस्ट किया है, लेकिन उन पे आपका कंट्रोल है. अगर आप उस बिजनेस को खुद ही सेल्फ ड्रिवन करना चाहते हो कि मैं ही हमेशा ड्राइव करूंगा और मैं ही हमेशा उसको कंट्रोल में अपने रखूंगा और मैं कोई टीम बिल्डिंग नहीं करूंगा, तो फिर आप कभी डाइवर्सिफाई बिजनेस को नहीं कर पाएंगे. तो दैट इज द ओनली स्कोप वेयर यू कैन डाइवर्सिफाई योर बिजनेस. सर, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है और हम लोग सारा कस्टम क्लियरिंग, फ्रेट फॉरवर्डिंग और इन सभी चीजों के अंदर हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर है और काफी बड़ा इंडस्ट्रीज है, तो हम भी चाहते हैं कि भाई अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग ट्राई करें. बट एक छोटे बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा यही होता है कि वो जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो फिर उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद समझ में आता है कि यार ये तो पीछे सारा गड़बड़ हो गया है, मतलब जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो पा रही है. तो उस चीज के लिए थोड़ा सा या तो ये है कि आप रिस्क लो, कोई बात नहीं, आपको सेटबैक लग रिस्क रहा नहीं है लेना, बट योर सिलेक्शन ऑफ पीपल शुड बी राइट. अगर अगर आप अगर यही बात होती तो मेरे ख्याल से इतने बड़े बड़े ग्रुप्स कभी बन नहीं पाते. आज अगर हम बात करें रिलायंस की, तो मेरे ख्याल से कितना टाइम होगा उनके एमडी के पास कि वो लोगों से इंटरेक्ट कर सके. मे बी आई विल से सम फ्यू सेकंड्स. अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें तो लोग ही संभाल रहे हैं. इवन मैं स्टीलबर्ड की अगर बात करूं, ग्रुप ऑफ कंपनीज की, तो कितना टाइम होता है लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए? बहुत ही कम. आप कहते हो कि अच्छा ठीक है फटाफट प्रॉब्लम बताओ. ये मैं अभी प्रोफेशनल कमर्शियल चीज की बात कर रहा हूँ कि आप टाइम, आप बताओ क्या प्रॉब्लम है, ओके, आप उसी टाइम पे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते हो या उसके ऑप्शंस शेयर कर देते हो. बट योर सिलेक्शन ऑफ पीपल हैज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको राइट पोजीशन के लिए राइट पर्सन हैज टू बी अपॉइंटेड एंड दैट इज योर जजमेंट. उसको तो और कोई कर नहीं सकता. आपका बिजनेस है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप ही डिफाइन करोगे कि मेरी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर करने के लिए या पार्शियली टेक ओवर करने के लिए कौन तैयार है. और अगर आप कहते हो कि राइट सिलेक्शन ऑफ पीपल नहीं है, तो देन डेफिनेटली फिर वो होगा कि आप आगे बढ़ोगे और आपको पता चलेगा आपका जो बैकलॉग है वहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है. तो दैट वे वी आर वेरी वेरी केयरफुल. हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि इट मे बी डिलेड बट choice of person has to be accurate as per the profile. So this is the suggestion I can give you, but there are a lot of examples including me. हम लोग तो इसी पैटर्न पे काम करते हैं. एंड प्लीज ट्रस्ट करो, इफ अ पर्सन इज ऑनेस्ट, थोड़ा बहुत आपका नुकसान भी हो गया तो should have a patience. आपको पता है इंटेंशनली नहीं किया, तो ग्रूमिंग एंड डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स अ टाइम. छोटी कंपनियों में मैंने हमेशा देखा क्या होता है कि उनका पेशेंस नहीं होता. वो कहते हैं कि आज मैंने इसको अपॉइंट किया, कल से मेरे को प्रॉफिट लाना शुरू कर दे, परसों से 50% की मुझे ग्रोथ करके दे दे. तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होगी तो फिर आप कैसे ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएंगे. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू राजीव जी. या स्वाति, यू वांट टू गो अहेड? या हाँ जी मैम, आपके पास सबके Yes. क्विक करते हैं. Hi, may I just have a quick
quick question. Hi, Shailendra. Thank you so much. I've heard each and every word you have said. Sorry, I've been off on video because not feeling well, but that's okay. And thank you so much for such an inspiring word statement, your experience. It's really insightful for all of us, I believe. Only question I would like to ask you is just want to know your technique, how you handle your bad days. Like we all have our bad days, frustrations of work or when something is not working out, maybe on the timeline we have thought of, or sometimes, we are in the middle somewhere and we see that something is not working out. We're working on it, but we're not seeing like in which direction we are going. So just on in your advice on this, how to handle those kind of situations. देखो, जब भी हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे तो मैं सारी चीजें छोड़ देता हूँ. दैट इज माई स्टाइल ऑफ वर्किंग. आई एम जस्ट सेइंग. Okay. मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ और मैं शांत होकर बैठ जाता हूँ. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई डिसीजन लें तो बहुत आपका स्टेबल माइंड होना चाहिए, क्योंकि आपके डिसीजन जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्ट करते हैं. तो जब आप बहुत टेंशन में होते हैं, चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं कर रही होती हैं, तो आप हर एक कोई बहुत रेस्टलेस हो जाता है और उस टाइम पे वो हैपेजर्ड मैनर्स में डिसीजन लेते हैं, एंड विच इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट और फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो उस टाइम पे मैं सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ, आराम से घूमने निकल जाता हूँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, फ़ोन भी बंद कर देता हूँ. और उसके बाद जब मेरे को लगता है कि अब मैं रिलैक्स हूँ, तब मैं ये सोचता हूँ कि इस प्रॉब्लम को, जैसे कि मैंने अपने पहले भी स्टेटमेंट में बोला कि मैं स्ट्रेट लाइन से नहीं सोचूंगा. यू ऑलवेज हैव टू बी पैरेलल थिंकिंग होनी चाहिए आपकी. पैरेलल थिंकिंग मीन्स कि उसको कितनी डायमेंशन से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. लोग जब भी आपके पास आते हैं, मोर देन 99% ऑफ द केसेस में वो स्ट्रेट थिंकिंग के साथ आते हैं कि जी मैंने एक्स काम किया और मेरे को प्रॉब्लम हुई, ये सॉल्व नहीं हुई, और अब मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. मैं उस पर एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं उस पर एफर्ट किए जा रहा हूँ, मैं उस पर चेंजेस कर रहा हूँ, लेकिन एफर्ट किए जा रहा हूँ, बट मेरे को सक्सेस नहीं मिली. तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी पैरेलल थिंकिंग है तो आप उसको अपॉर्चुनिटीज को डिफरेंट डायरेक्शन से देख सकते हैं. अगर आपको एक्स पाथ नहीं मिला तो आप वाई पाथ से जा सकते हो. इसका सीधा सा एग्जांपल है कि अगर आपने एवरेस्ट चढ़ना है तो अल्टीमेटली तो आपने एवरेस्ट पे पहुंचना है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव. लेकिन उसका एक रास्ता नहीं है, देयर मे बी 50 वेज. अगर आप एक रास्ते पे जा रहे हो और वहां पे आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आपके पास हमेशा दूसरा वे आउट जरूर होता है. उसको देखने की जरूरत है कि क्या ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और उन ऑप्शंस पे चल के थोड़े टाइम में अगर आपको लगता है कि आपको सक्सेस मिल रही है तो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हो, नहीं तो आप अपना रास्ता फिर से चेंज कर सकते हो. मैं कभी इस चीज में बिलीव नहीं करता जो लोग कहते हैं कि आपने किस सोच ली, अब आप उसके पीछे पड़े रहो, मुझे करके ही देना है, ये मेरा जुनून है. नहीं, आपको ये देखना है कि आपकी वो डायरेक्शन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहां पे ट्विस्ट कर सकते हो और चेंजेस कर सकते हो. जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया, पेंडेमिक था, हेलमेट हम लोग नहीं बेच पा रहे थे. हेलमेट इज और फ्लैगशिप कंपनी. तो हमने क्या किया, उसका वाइजर निकाला, उसके मैकेनिज्म में चेंजेस किए, फेस शील्ड्स बनाई जो इंडिया में और कोई बना नहीं पा रहा था. इंपोर्ट होना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि वो सारी मेडिकल फेस शील्ड आती है, बट यू हैव गॉट अ पॉलीकार्बोनेट ग्लास, इतनी बढ़िया फेस शील्ड. तो हमने क्या किया, हमने वो बनानी शुरू कर. सो दैट इज कॉल्ड अ पैरेलल थिंकिंग. बहुत प्रॉब्लम थी, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बट यस इट वाज एन ऑप्शन. तो आप हमेशा याद रखो आपके पास ऑप्शंस हैं, बट क्वेश्चन ये है कि क्या आप उन्हें आइडेंटिफाई कर पा रहे हो शांत दिमाग से, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. दिस इज माय बिलीफ. Thank you. Thank you, Swati. Yeah, Amit, please go ahead. हाँ जी, थैंक यू जी. थैंक यू शैलेंद्र जी आज की इस मीटिंग के लिए. और मैं आपके साथ साथ यहाँ ध्यान चाहूंगा अपने सारे बैंक मेंबर्स का. बात मैंने उठाई है, नोट की है थोड़ी सी आपके ही आज की प्रेजेंटेशन में से, जिसमें आप कह रहे थे कि जब हम लोग बीमार होते हैं या जब हमारे को परेशानी आ जाती है, उस समय सब ही बंदे, हर बंदा यही कहता है कि किसी तरह से मुझे ठीक कर दो. राइट जी. ठीक कर दो तो कहता है, उसके साथ में बंदा शायद कहीं ना कहीं ये भी डेफिनेटली मैं कहता हूँ ये सोचता होगा कि यार मैं पहले संभाल लेता किसी तरह से. शायद जब वो हमारी बात हो रही थी फिटनेस को लेकर के, तो इस
संभाल लेने के ऊपर जब बात हो रही थी तो मैं पहले कर लेता या संभाल लेता। और हमारे ग्रुप के अंदर प्रीत जी हैं, राजीव जी हैं, जसप्रीत जी या बाकी और लोग हैं जिन लोगों ने हम लोगों को फिटनेस के बारे में अच्छी तरह से सिखाना स्टार्ट किया हुआ है। और अब पिछले कुछ समय से मैं भी इन लोगों के साथ में उसको ज्वाइन करके और फील कर पा रहा हूँ। और जसवीर जी से मेरी थोड़े दिन पहले ये बात हो रही थी कि कोई और इंसान आपको ये नहीं बता सकता। वो बता सकते हैं कि आप कोई डॉक्टर्स हो गए या योगा गुरुज हो गए या बाकी लोग हो गए, कि वो बता सकते हैं कि आप ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपकी बॉडी में अच्छा आएगा। लेकिन मैं जसप्रीत जी से बात हो रही थी कि जब आप खुद करते हैं उस चीज को, तो आपके अंदर जो फीलिंग्स, अब जो अच्छा आता है बॉडी के अंदर, वो खुद ही आप ही सिर्फ महसूस कर सकते हो उस चीज को। तो वो जो एक है, मैं अपने सभी बैंक मेंबर से चाहूंगा कि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जो बैंकेबल वॉक्स करके, उसमें हम लोग अर्ली मॉर्निंग अपना जॉगिंग या बाकी सारा कुछ का भी वो दे रहे हैं आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो मैं ज्यादा से ज्यादा मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उसको ज्वाइन करें और एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला करके हम लोग चलें, तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। यस यस एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर और ये कोई एक दिन में आप ठीक कर नहीं सकते। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स अ प्रोसेस बेसिकली। और अगर सब लोग उसमें एसोसिएट होते हैं, जैसे मैं तो खैर योगा सेशन में पेंडेमिक से पहले मैं थोड़ा बहुत जिम भी जाता था टू बी फिट, और थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी करते थे। तो अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम भी उसमें एसोसिएट होंगे, और जसप्रीत जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिन्हें को इनवाइट करेंगे, सारे लोग मेरे ख्याल से एसोसिएट हों और होना भी चाहिए। एंड मेक योरसेल्फ फिट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। और आप फिट हो तो आपकी बॉडी आपको खुद ही बता देगी कि यस आई एम फिट। वो फीलिंग, उस फीलिंग का कोई मतलब लाजवाब फीलिंग है कि वो पता लगता है कि हम कहाँ गलती कर रहे थे और अब क्या चेंजेस आ रहे हैं। एब्सोल्युटली, तो आई एग्री विद यू। थैंक यू सो मच। Thank you, Amit. Yeah, Gaurav, please go ahead. Sir, good morning. I really the thought process and the detail which you shared was really inspiring. I was associated with NIT Limited, looking after their due diligence and the process audit for their entire franchise network. You rightly said how you manage your distribution channel is really important to make you grow. Or organization which handles and really cares for their organization and their distribution channel are really likely to. Like you see, NIT has a vast network of their channels and franchise, and they are no more into existence with their franchise network. It's not because they don't have any bad feeling into that, but the vision which the management used to take for closing and non-operating centers, not nurturing them, not supporting them, only focusing about the business. भैया धंधा क्या दे रहे हो मुझे? धंधा नहीं दे रहे हो, बंद कर दो, मैं रिन्यू नहीं करूंगा। धंधा नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। But they are not supporting in any manner. अगर किसी बंदे का किसी रीजन से या किसी XYZ रीजन से they are not supporting, they require some additional help, these people are not able to do it. So what NIT Limited was somewhere around 15 years back or 20 years back, having 1,000+ centers, are now with 0 centers. So you rightly said, and you have a great thought process, that your distribution channel should also owe a business into your business. That should be that has to be clear-cut indicated, as well as represented and being executed. लिखते सब लोग हैं, business partners हैं मेरे, but कोई execution level पे उसको लेके नहीं जाना चाहता. So that is the thing which I just need to Wanted to share, yeah. गौरव जी, share with you. आपने जो बोला ठीक बोला है, क्योंकि जब मैंने अपना करियर की स्टार्ट किया था 25-26 इयर्स बैक, तो NIT लिमिटेड वाज द पायनियर, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है. Yes. और इट वाज लाइक अ हॉट केक कि इंडिया में तो इट वाज लाइक अ रेवोल्यूशन एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम सारी इंटरनेट और ये सब कंप्यूटर्स की जर्नी स्टार्ट हुई थी बेसिकली इंडिया की अगर बात करें. तो क्वेश्चन वही है कि आप मार्केट में जब हैं तो आप हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन देखती हैं. जो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती हैं लोगों को, बिजनेसेस को, जो इन्वेस्ट इन पीपल, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा. बट अगर आप लोगों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे,
आप सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आपसे दूर हो जाएगी। Yes. एंड आई एम द फर्म बिलीवर ऑफ दैट। तो आपको जहां इन्वेस्ट करना है आप उसको ना करके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज योर बेसिक प्रॉब्लम। Yes. तो वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन करेगी लॉन्ग रन में सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ, जो मैंने वर्ड यूज किया, उसको पाना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी चीज सर, एक बहुत अच्छी चीज आपने बोली कि डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन। अब जैसे हर एक प्रोडक्ट, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी मोनोपोलिस्टिक है, उसकी एक शेल्फ लाइफ है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल। यू कांट ओन एंड लव योर प्रोडक्ट एंड से कि भैया ये मेरा प्रोडक्ट ही है और यही प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा जो अब तक 20 साल से बिकता है। सो वो चीजें भी बहुत क्लियर है। जैसे स्टील बर्ड इज ओनली नोन फॉर देयर हेलमेट्स, नथिंग मोर देन दैट फॉर अ कॉमन लेमैन पीपल, बट यू राइटली सेड यू डाइवर्सिफाइड इन ऑर्डर टू कोप अप द सर्टेन circumstances which gives boost to your channel partners as well. एब्सोल्युटली। तो हम लोग नेसेसिटी में भी हैं, हाँ. तो हम लोग बहुत सारी दूसरी चीजों में भी हैं। हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि मोनोपोली तो कभी किसी की रही नहीं और कभी रहेगी भी नहीं। इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया था, यू ऑलवेज हैज टू अपग्रेड योरसेल्फ विद अलाइनमेंट टू द टेक्नोलॉजी। अगर आप अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने सिस्टम को, अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहते हैं तो डेफिनेटली आप मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे, आप स्टिक रहेंगे, आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो भी आप सर्वाइव कर पाएंगे। बट अगर आप ये सिर्फ सोचेंगे कि मैंने कर लिया, आई एम द नंबर 1 और अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हायर एंड फायर, और जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा, तो फिर एक दिन आप भी नहीं रहोगे। हाँ, राइट। दिस इज व्हाट आई फील। नहीं, Thank you. right. Thank you, Gaurav. Thank you. We'll have 3 more questions, sir. I hope you can take all these. Yeah. Yeah, sure. आपके पास सबसे लास्ट में, आप बेस्ट हमने लास्ट में रखा है। Yeah, Neha, please, if you want to switch on your camera and you want to ask quickly, yeah. Monami, coming to you as next. So yeah. Hello, Shailendra ji. See, I actually believe what you said, that having the right team is important. But now, as MSME, what happens is sometimes, when we are looking for a team, we are not able to hire somebody who has a lot of experience or, somebody who is very comfortable with the job. So my first question is, how would I find the right person ki without experience, the person would fit into the role? And one more question is, like, I have an employee. But the problem that I am facing, she is very talented, but the problem is she doesn't, because she doesn't have that much of work experience, she doesn't have confidence in herself. So in spite of believing in her, in spite of giving her all the freedom, there are times when she doesn't make a quick decision. So how do you rectify those problems, and how do you, what things do you see while choosing a team? What all decisions do you make? आपके 2 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का मैं ये जवाब देता हूँ कि लोगों को हायर कैसे करना है। Yes. हम लोग हायरिंग के लिए, देखिए आपके पास बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, आपके पास अपने कनेक्शंस हैं। Yes. हम लोग कंसल्टेंट्स भी हैं, तो हम लोग क्या सारे चैनल्स पे उसको एडवर्टाइज करते हैं और फिर उसमें हम लोग क्वेश्चनेयर के बेसिस पे या जो भी आपके एवरेज वेटेड एवरेज मेथड्स हैं उसके बेसिस पे हम लोग उनको हायर करते हैं। हमारा कभी भी ये इंटरेस्ट नहीं होता कि उसको बिजनेस नॉलेज कितनी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी नॉलेज है, उसको सिस्टम्स की कितनी नॉलेज है, कितना उसका मेरे से अलाइंड फील्ड में इंटरेस्ट या एक्सपीरियंस है। मेरा हमेशा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि उसका एप्टीट्यूड एंड फ्लेक्सिबिलिटी कितनी। आप हमेशा देखिए, जो भी पर्सन फ्लेक्सिबल होगा और जिसकी ग्रास्पिंग और लर्निंग रहेगी, जिसको नई चीजें सीखने की इंटरेस्ट होगा, वो किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफाइल पे जाके फिट हो जाएगा और बहुत जल्दी अपने आप को शेप दे देगा। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर आप किसी भी एडमेंट पर्सनैलिटी को लेते हैं, आइदर उसको कितना भी एक्सपीरियंस है, कितना भी एक्सपोजर है, या अगर उसमें लर्निंग की कैपेबिलिटी नहीं है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आज हम 100 ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो 100 के 100 ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरीके से काम कर रही है। हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अलग है, ड्राइविंग फोर्सेस अलग है, सिस्टम्स डिफरेंट है। आप सेम फील्ड की 100 ऑर्गेनाइजेशन आप उठा के देख लीजिए, सबका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, उनका थॉट प्रोसेस भी अलग है।
उनका गोल एक है कि वी हैव टू बी कमर्शियली वायबल, टर्नओवर ज्यादा होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ब्रांड एलिवेशन होना चाहिए, दैट्स ओके, दैट्स कॉमन, बट उनके काम करने का तरीका सबका आपको अलग मिलेगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम एक्स टू वाई। तो आप जो मैं देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि सारे प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, उसके बाद जो उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उनमें स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आपको नजर आता है, उनमें लर्निंग स्किल्स क्या है, और वो सिर्फ काम नहीं करना चाहता। मैं कभी ऐसे पर्सन को चूज नहीं करता जो सिर्फ काम करना चाहता। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमें ऐसा चाहिए जो 24 घंटे काम करता रहे, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए 24 घंटे काम करता रहे, बट हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता रहे। मैं उससे हमेशा ये जरूर पूछता हूँ कि ठीक है, कितना टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हो, कितना ट्रेवलिंग पे कर रहे हो, कितना फन एक्टिविटीज में, क्योंकि हम लोग खुद बहुत एडवेंचरस हैं, लॉट ऑफ रैलीज, कार रैलीज, बाइक रैलीज, और बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं। तो उसका उसका लाइफ के लिए जो उसका थॉट प्रोसेस है वो क्या है, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको उसमें बैलेंस लोग मिलते हैं तो दे विल नेवर लीव यू, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, money is not the only important criteria for the people to stick to the organization or to leave the organization. It is the organization culture, bosses, and how you are well connected with them. बहुत बार होता है शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, आपके नंबर्स नहीं अचीव हो रहे होते, बट इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं कि अगर हम क्रिकेट की बात करें तो MS धोनी सेड टू बी द कूलेस्ट कैप्टन। तो ऐसे हमारे बहुत एग्रेसिव कैप्टन्स भी आए हैं, बट आई थिंक अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट बीइंग अ कूल पर्सन। तो आप क्या सोचते हैं, उस लेवल के प्रेशर्स रहते हुए भी आप कूल रहते हैं और आप उसमें डिसीजन लेते हैं, लोगों को एसोसिएट करके रखते हैं, तो आप खुद भी खुश रहते हैं और वो भी खुश रहते हैं। दैट इज नंबर वन। सेकंड क्वेश्चन आपका था, I think, can you just repeat? Yeah, see, actually with some of my employees I've seen that they have the potential, but kai baar jaise in spite of giving them freedom wo on the spot decision nahi le pate, and I've given them full freedom, I trust them, I'm like I've told them ki it is okay agar galti bhi hui to. So how do I make them more confident, because in spite of giving them all trainings wo ek cheez nahi aa rahi hai making decisions, because being a small business sometimes you have to rely on other people to take business if you are doing some other work. देखिए, जब डिसीजन की बात आती है तो ये एक करेक्टरिस्टिक है ऑफ एनी पर्सन। देयर आर मेनी पीपल अक्रॉस यू जहाँ पे आप देखोगे कि उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें डिसीजन कैपेबिलिटी नहीं है। आप उन्हें ग्रूम कर सकते हो, आप उन्हें ट्रेन कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है उसके बाद भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे तो उनको रिलेटेड फील्ड में आप शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज एन अथॉरिटी बेस्ड, इट्स अबाउट द ओनरशिप, इट्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप डिसीजन लेते हो तो वो सही होगा तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गलत होगा तो वो भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं आपको बताता हूँ 95% ऑफ द पीपल डोंट टेक डिसीजन, इवन 98% ऑफ द पीपल डोंट टेक डिसीजन। वो हमेशा बोलते हैं कि उसने ये किया तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। आपको बहुत कम लोग आके बोलेंगे ये मैंने किया, मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई और इसकी वजह से ये नुकसान हुआ आपको। वो बोलेंगे उसने बोला, उस डिपार्टमेंट ने बोला, उसकी वजह से ये नहीं हुआ और अल्टीमेटली मेरे को सफर करना पड़ा। तो वो दैट इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग। तो ये तो एक करेक्टरिस्टिक है ऑफ एन इंडिविजुअल जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी है। डिसीजन वही ले सकता है, आप उसे ग्रूम कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि दिस पर्सन इज नॉट बीन एबल टू टेक डिसीजन, देन डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज ट्रांसफर इनटू सम अदर डिपार्टमेंट जहाँ पे वो दूसरे रोल्स परफॉर्म कर सकता है, ऑपरेशनल रोल्स, बिकॉज बहुत सारे रोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो दैट आई थिंक इज वन ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच एट लीस्ट आई डू। Yes, thank you so much. Thank you, Neha. Yeah, Munami, if you want to quickly switch on. Yeah, just you're on mute. Yeah, please. Yes. Hello sir, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन कुछ हद तक नेहा के क्वेश्चन से रिलेटेड ही था कि नॉट एग्जैक्टली हाउ टू हायर, पर जैसे एटलीस्ट में हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि इवन दो वी कैन फाइंड द राइट पर्सन, कि कभी किसी कैंडिडेट से बात हो, कुछ हो, तो लगता है कि हाँ he or she could be a very good addition to our
आर कंपनी, आर रिसोर्स पूल, पर कई बार वो अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि कुछ हद तक अब जब तक वो साथ काम नहीं करे तब तक हम ट्रस्ट बिल्ड भी नहीं कर सकते, तो वो कनेक्शन भी नहीं होता। और उसको या तो 2 रीजंस जो हमने फेस किया, या तो उसके कहीं और कुछ अच्छा पे पैकेज मिल रहा होता है, बीइंग एमएसएमई बोलेंगे मैं, बीइंग स्टार्टअप हम उतना लुक्रेटिव पे पैकेज तो दे नहीं पाते ऑब्वियसली, तो या तो उसको कहीं और कुछ हायर कुछ मिल रहा होता है, और स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में, हम आईटी इंडस्ट्री में है तो उसमें तो पे पैकेजेस और ही अच्छी होती है तो या तो वो हो रहा होता है, या तो एक स्टेबिलिटी का फैक्टर भी आता है। कई ये भी देखा है कि लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं कंपनी कितने दिन तक चलेगी, इसके साथ एसोसिएट होना भी है कि नहीं होना है। कई कोविड टाइम पे तो हमने ये भी देखा कुछ लोगों की जॉब छूट गई थी, तो वैसे लोगों को हमने हायर करने की कोशिश करी, उन्होंने भी सोचा कि ना क्या पता एक और शॉर्ट टर्म कुछ हो तो भाई हम रिलाई नहीं करेंगे। तो इस केस में कैसे हम राइट टैलेंट को अट्रैक्ट करें उनको उनके इसमें। देखिए मैंने पहले भी तुमसे बताया कि आई एम द फर्म बिलीवर ऑफ एचआर। ठीक है, ये जो सारे पोर्टफोलियोज आते हैं ये एचआर के अंडर में आते हैं। एचआर की बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपके कैंडिडेट्स को जब शॉर्टलिस्ट करते हैं तो उसमें वो बहुत सारे वेटेज एवरेज मार्क्स देते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, एटीट्यूड कैसा है, फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, एक्सपीरियंस कितना है, और उन सबके एक रेटिंग रहती है। जब आप उसका नीचे टोटल करते हैं तो उस रेटिंग में ये पता चल जाता है कि इस पर्सन की टेंटेटिव पर्सनैलिटी क्या रहेगी। आईटी इंडस्ट्री में एट्रिशन है, आई डू एग्री विद यू बिकॉज इट्स अ वेरी डायनेमिक इंडस्ट्री। तो जैसे कि आपके आईटी इंडस्ट्री ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी, बिकॉज इट्स वेरी डायनेमिक। तो जो जितनी भी डायनेमिक इंडस्ट्रीज हैं उनमें एट्रिशन हमेशा ज्यादा होता है, लोगों को रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको ये सारे जो क्वेश्चनेयर्स हैं जो बहुत सारी कंपनीज अडॉप्ट करती हैं वो आपको लेने पड़ेंगे, ताकि एटलीस्ट आपको एक आइडिया लगे कि इसका एवरेज वेट ये आ रहा है इस पर्सन का। सपोज कीजिए वो आपके एक्स लेवल को मैच करता है, देन यू कैन स्टार्ट द जर्नी विद दैट पर्सन। दैट इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहता है कि आपने पैकेजेस की बात की, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ कि पीपल आर कनेक्टेड टू देयर बॉसेस या जो उनके सीनियर्स हैं। मनी इज नॉट दी ओनली एंड ओनली क्राइटेरिया। हम लोग भी एक रीजनेबल पे मास्टर हैं, हम वी आर नॉट अ वेरी हाई पे मास्टर ऑर्गेनाइजेशन, बट यस वी आर रीजनेबली गुड पे मास्टर ऑर्गेनाइजेशन। हमारी भी अपनी एक ऑनलाइन कंपनी है, दैट इज प्योरली आईटी ऑर्गेनाइजेशन इन पंचकुला विद द नेम ऑफ यू शॉपर, शॉपर स्टीलवर्क। तो हमारे साथ जितने भी लोग एसोसिएट हुए हैं, मैं आपको ये बता सकता हूँ इवन इन आईटी कंपनी, मुझे नहीं लगता पिछले 5 सालों में या 4 सालों में 2 लोगों को छोड़ के किसी ने भी वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज की है। तो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप उसको उसका क्या पाथ दिखाते हो कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला, कैसे आप उसको एसोसिएट करते हो, पैरामीटर्स के बेसिस पे सही पर्सन का सिलेक्शन करते हो, और देन आप उसको ग्रूम और ट्रेन करते हो। क्योंकि आज की डेट में अगेन वही बात आती है कि सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल इनकम वो भी होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को ये आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रोड मैप, रोड पाथ या फाइनेंशियल्स दे पाओगे, तो लोग ज्वाइन नहीं भी करते। ऐसे भी मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग घर पे बैठे हुए, उनके पास कोई जॉब नहीं है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट दे आर नॉट रेडी टू ज्वाइन। I came across यही हुआ people, हमारे साथ। this is a problem. You are not doing anything. You are sitting at home, but you don't want to do anything. आप कहते हो कि मैं ज्वाइन तब करूंगा जब मेरी ये कंडीशंस पूरी होंगी। तो that means that's not a right candidate based on behavioral factors. तो ये सब चीजें देखो, आपको एचआर में ये सब चीजें जज करने के बाद ही आप कोई डिसीजन ले सकते हो। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, आउट ऑफ 100 अगर आपका सक्सेस रेशियो 70% भी है तो आपको खुश होना चाहिए कि आज के इतने डायनामिक एनवायरनमेंट में 70% सक्सेस रेशियो भी अच्छा रेशियो है। अच्छा, मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे डाइवर्सिफिकेशन, राजीव जी ने जैसे पूछा, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि डाइवर्सिफिकेशन के बिजनेस का, तो जैसे हम जब बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं तो किस पॉइंट पे आके हमें सोचना चाहिए कि हाँ अब ये वाला बहुत हो गया, अभी थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि हम एक ही चीज में लगे हुए होते हैं। जो फर्स्ट बिजनेस होता है वो तो हमारे पैशन से होता है, कि जिसमें हम सबसे ज्यादा पैशनेट होते हैं, हम उस चीज के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, यही आता है सोच के। तो एक पॉइंट हाँ जरूर होता है जब लगता है कि ठीक है कुछ और भी ये होना चाहिए, तो वो पॉइंट विच इज द राइट पॉइंट, कि जब हाँ जहाँ हम सोचे कि नहीं ठीक है ये तो ठीक है, कुछ और भी सोचना चाहिए हमें। जब आपको लगे कि ये राइट पॉइंट है, दैट इज दी ओनली राइट पॉइंट। कि जब आपको, जिस दिन आपको लगे, उसका रीजन बताता हूँ। जब आप एक बिजनेस जर्नी में रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जर्नी में रहते हैं, तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, है ना, आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, आप नंबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ आपको ऐसे एसोसिएट मिले जहां पे आपको लगा कि हाँ आप, मैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ, दिस इज अ गुड लाइन, ये हम कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को साथ में कोई एसोसिएट मिला है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन्वेस्टर, वट जो भी है, दैट इज द राइट मोमेंट ओनली। आपने कुछ फैक्टर्स एनालिसिस करने हैं, उसके बाद पे आपको डिसीजन लेना है। अदरवाइज तो आप वेट ही करते रहोगे कि जब मेरी कंपनी 500 करोड़ की होगी तब मैं डिसीजन लूंगा, 1000 करोड़ की होगी तब डिसीजन लूंगा, तो डिसीजन तो कभी होगा ही नहीं। तो अगर आप 50 करोड़ के भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगा कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए मेरे को करेक्ट सेट ऑफ पीपल मिल गए हैं, ये लाइन इंटरेस्टिंग है, मेरे को भी काम करने में मजा आएगा, इसके लिए मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, तो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए और कभी वेट नहीं करनी चाहिए। मैंने एक चीज देखी है कि या स्कूल में कहते थे कि टीचर कहती थी कि ठीक है आप ये लिखो, हम लोग लिखते रहते थे और कहते थे इसको घर पे जाके देखेंगे, और फिर वो क्या होता है कि वो पेजेस रह जाते हैं। आप किसी सेमिनार में जाते हो, वो बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं, आप उसे नोट करते रहते हो, फिर वो घर पे जाके वो डायरी आपको पता नहीं होता कहाँ चली गई, वो आपको ट्रेनिंग भी याद नहीं होती, उसकी 2-4 बातें याद रह जाती हैं, वो डायरी भी आपकी कहीं खो जाती है, और 3-4 साल बाद फिर वो पता चलता है अच्छा ये मैं उस सेशन में गया था तब के नोट्स पढ़े हुए मेरे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको जो भी सीखना है ऑन दी जॉब ही सीखना है। आपने जो आज मुझसे बात किया, मैंने आपसे जो बात की, जो मैंने सीख लिया या जो आपने सीखा वही सीख लिया, दैट इज योर एक्सपीरियंस। तो डिसीजन भी ऐसे ही लिया जाता है कि आप ग्रोथ कर रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिली और उसी दिन आपने डिसीजन ले लेना है बेस्ड ऑन योर फैक्टर्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस, लॉट ऑफ फैक्टर्स। आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एंड यू नेवर नो कि जो बिजनेस आप कर रहे हो उससे बड़े बिजनेस की तरफ आप डाइवर्ट हो जाओ। सर कुछ हद तक गट फीलिंग एंड फ्लो, यही कह रहे हो ना? इट्स नॉट अ गट फीलिंग, इट्स अ साइंटिफिक गट फीलिंग आई विल से रादर, क्योंकि बेस्ड ऑन Calculated फैक्टर्स। अगर मेरी गट फीलिंग आई कि कल को मैं मूवी में काम करना शुरू कर दूं बिकॉज मेरी एक एंटरटेनमेंट कंपनी भी है, तो दैट इज माई गट फीलिंग, बट मुझे पता है मैं वो कर नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं राइट सेट ऑफ पीपल के साथ मिलने के बाद भी मैं वो काम नहीं करता। क्योंकि मैंने भी अपनी 1-2 एल्बम लॉन्च की थी, हमारे एमडी ने भी की थी, ही इज आल्सो वेरी पैशनेट अबाउट, क्योंकि हमारी अपनी खुद की एंटरटेनमेंट कंपनी है, तो लॉट ऑफ एल्बम्स एंड बहुत सारे गाने आप देखते हैं मेचुआन या बहुत सारे, उनपे बहुत सारे हमने बना रखे हैं वो सारे, और हम उनको सेल आउट कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि गट फीलिंग इज वन मैटर, साइंटिफिक गट फीलिंग विद फैक्टर्स इज अनदर मैटर। तो मुझे लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, कर पाऊंगा, राइट सेट ऑफ पीपल है, इंफ्रा है, तो देन यू कैन टेक अ डिसीजन। आई ऑलवेज डू दैट। Great. Thank you, Monami. I think that was a question for many of us. You asked very important questions. So, sir, we are still 3 more questions. We exceeded our timelines by a long margin. But yeah, Neena ji, please go ahead, and then we'll come to you, Preet ji and Avneet. थैंक यू जसप्रीत, थैंक यू शैलेंद्र जी। सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि बहुत बैलेंस्ड टॉक था आपका। इट वाज नॉट वो जो इंटिमिडेटिंग हो जाता है ना, सक्सेस, इतने फॉलोअर, इतना रेवेन्यू, वो मुझे दिल की धड़कन तेज कर देता है। आपने बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखा हार्ट एंड माइंड का, तो थैंक यू वेरी मच। नाउ फर्स्ट आई वांट टू जस्ट क्विकली रीइंफोर्स दैट फ्रॉम माय ओन पर्सनल जर्नी कि लोग पैसे के लिए नहीं काम करते हैं हमेशा। सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए, करेक्ट, सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। आई हैड अ स्कूल रनिंग फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स एंड मेरे को कोई स्टाफ कभी पैसे के लिए छोड़ के नहीं गया, किसी का ट्रांसफर हो गया तो गया। तो ये जो आपने पॉइंट्स लिखे वो मन में थे, कभी कागज में नहीं उतारे थे। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है जो आप लोगों के साथ इतने कनेक्टेड है। आपने कहा स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑल द पीपल हु वुड कम वर एंटिटीज, और मेरे को सब पूछते थे आप कहाँ से स्टाफ रखते हो। आई सेड मैंने कभी उनका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं देखा, मैंने उनका एटीट्यूड देखा, उनका बच्चों के साथ काम करने का पैशन देखा, जब वो लगा तो उनको रख लिया, और उसके बाद देव ऑलवेज गिवन रिजल्ट्स, एंड आज भी उनके मैसेज आते हैं। सो द सेकंड पॉइंट दैट आई वांट टू आस्क, आई नो इट्स टोटली ऑफ
the talk, but I'm very overwhelmed to introduce my educational project for early childhood learners. So is Steelbird wanting to diversify into education? Very straight question. हाँ, हम लोग एजुकेशन में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. वी आर ऑलवेज ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज. अभी तक हम लोगों का कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो आई थिंक ऑल्दो हॉस्पिटल एजुकेशन नहीं, आई एम जस्ट सेइंग, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल भी नहीं है, ऑल्दो हम मेडिकल लाइन में है, पैथोलॉजी में है. ऐसे ही एजुकेशन लाइन में भी हमारा अभी कोई सेटअप नहीं है, बट यस वी आर वेरी ओपन. और अगर हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है और ऐसा कोई प्रोजेक्ट समझ में आता है, तो श्योरली उस पर बातचीत करके उस लाइन में भी डाइवर्सिफाई किया जा सकता है. Perfect. So me and Jaspreet are going to see you very soon. Thank you, Yeah, sure, not a problem. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah, Preet ji, and then we'll keep the last one for Navneet because all. हम वैसे नवनीत जी से भी पूछ सकते थे. पहले मैं एक्चुअली जब शैलेंद्र जी ये कह रहे थे कि मैं वो 6 डायरियां ढूंढ रहा था जिसमें हमने नोट्स बनाए थे, और नवनीत मुस्कुरा रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि इनके पास भी वो पड़ी है. जब हम किसी भी एग्जीबिशन में जाते हैं या किसी सेमिनार में जाते हैं, हम सबकी सेम कहानी. थैंक यू वेरी मच शैलेंद्र जी. आपने जितनी भी बातें की बहुत दिल से की, और बहुत एक कॉमन वी पीपल कैन को रिलेट, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो सबको अपनी अपनी स्टोरी दिख रही थी. हम लोग बहुत इस चीज को मानते हैं. हमारा जो एम है इस बैंक का और बैंकेबल टॉक का, कि हम हेल्थ के साथ साथ वेल्थ को भी, और वेल्थ के साथ साथ हेल्थ को भी उठाएं और कम्युनिटी को ग्रो करें. लोग फिट होंगे. मैं सदा एक बात कहता हूं कि बॉडी फिट तो माइंड फिट. आपके साथ जीवन में न पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, पैसा कुछ भी लास्ट टाइम तक नहीं रहेगा. सिर्फ आपकी बॉडी है जो आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगी. अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं. तो मेरा ये मानना है कि, और आपने बहुत अच्छे से कहा कि जब आप फिट होते हो तो उसकी आप सक्सेस को एंजॉय भी तभी करते हो जब आप फिट होते हो. तो मेरा तो आपसे भी हमने प्रेरणा ली है इस बात की. आई वुड से कि फिट रहें, खुश रहें और खुश रखें. दैट्स इट. थैंक यू जी. आई एग्री विद यू. Thank you. So final, last question, wrapping up. Navneet, over to you. So, sir, I don't have any question. So the length of the session always show that how interesting the session is, and our session timing is till 10:30, and now it's almost like, oh my God, it's 11:06. So this shows that the session is definitely, it's a wonderful, and I think this is the longest session we are having now. So I don't know that. This shows that how much interesting the session is. So personally, I would like to thank you very much for accepting my invite to come as a speaker and honor me as well as the bank on this platform. And so I know Mr. Shailendra from last 7-8 years, and I'm blessed that I'm associated with Steelbird, and Mr. Shailendra from last 7-8 years. We have done some trophies for them, and I attended 2 functions, 2 events also, and the event, सर ने बोला था कि आईफा जैसा इवेंट होता है, तो एक्चुअली में वो आईफा जैसा ही इवेंट होता है. मतलब ग्लैमर, एंड उसके बाद भी मतलब 1000 आदमी होता है, कम से कम 1000-2000 आदमी होता है. उसके बाद भी शैलेंद्र जी, मतलब जिन लोगों से भी आप कनेक्टेड हो ना, वो एक बंदा आके आपसे पर्सनली मिल लेता है. ये नहीं है कि एमडी हैं, राजीव जी हैं, राजीव कपूर जी जो ओनर हैं, या उनके डैड हैं, या शैलेंद्र जी हैं. मतलब ठीक है आप आए हो, तो मैं तो एक वेंडर ही था, बट आपको इग्नोर करके ऐसे ही, मतलब ठीक है आए तो आए. बट वो जो पर्सनल बॉन्डिंग है, दैट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. और मैं कभी भी शैलेंद्र जी को फोन करता हूँ तो मतलब सिंपली एक कॉल पे अवेलेबल है. सो इट्स वेरी वेरी ही इज हैविंग अ ग्रेट पर्सनालिटी. सो थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू नवनीत जी. मैं यही थैंक यू आयुषी जी, जसप्रीत जी, नवनीत जी फॉर इनवाइटिंग मी एज अ स्पीकर. और मेरे को बहुत अच्छा लगा अपने एक्सपीरियंस शेयर करके. और द पावर ऑफ पीपल इज वेरी स्ट्रॉन्ग. बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों से कनेक्टेड हैं, जैसे नवनीत जी से भी हम काफी टाइम से कनेक्टेड हैं, और तो आप उनके साथ एसोसिएटेड हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा आपको कुछ सोचने की जरूरत पड़ती है. बिजनेस तो आपका बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स ग्रो करता ही रहता है, बट एटलीस्ट एट लास्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड वी ऑल आर ह्यूमन.
So that is very very important. So इसी फिलॉसफी पे हम लोग चलते हैं और आई एम वेरी होपफुल कि इसी पाथ पे हम लोग आगे चलते रहेंगे और लोगों के साथ एसोसिएट होते रहेंगे ग्लोबली और काम भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे. डेफिनेटली ऐसी पार्टीज करते रहेंगे कोविड के बाद. Aishi, जो हमारी लाइफ लाइन है. can you please share the screen, Sure. Aishi, what we have done for Sure, sure. Shailendra sir, Steelwood. So this was the trophy what we have done for Steelwood. हाँ, ये मुझे याद है हम लोग का एक आई थिंक थाईलैंड वाला इवेंट था नवनीत जी. Yes sir, yes sir. This was for थाईलैंड वाज हाँ जी, इवेंट. हाँ जी, थाईलैंड के लिए. मेरे ख्याल से हमने शायद गिनीज में भी ट्राई किया उसके लिए. वी टुक अराउंड 1200 पीपल एट वन गो. Wow. मेरे ख्याल से आज तक कोई भी कंपनी थाईलैंड शायद एक गो में 1200 लोगों को नहीं ले गई है फॉर द इवेंट्स एंड ऑल. एंड इट वाज ऑल फन. और वहां पे मतलब आपको ये लग रहा था आपका अपना ही एक सिटी बन गया है. सारे होटल्स आपके थे, सारी फ्लाइट्स आपकी थी, स्टेज आपका था, वेंडर्स आपके थे, सारे चैनल पार्टनर्स आपके थे और बहुत मजा आया. हमारा नेक्स्ट प्लान था मलेशिया का to take 2,500 people at one go. I think it was a budget of close to 29 crores for that event. तो वर्ल्ड के बेस्ट डांसिंग ट्रूप्स, वर्ल्ड के बेस्ट इवेंट्स, वर्ल्ड के बेस्ट परफॉर्मर्स उसमें आते हैं और इट इज लाइक अगेन बॉलीवुड स्टाइल, क्योंकि हम लोग की कंपनी बहुत फन लविंग कंपनी है. तो नवनीत जी बता सकते हैं, तो ये ट्रॉफी तब बनाई थी, नवनीत जी नहीं बनाई थी. तो बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने. और मेरे को ये जरूर है कि जब भी हमारा लास्ट डे हो लाइफ में, तो हम प्रोफेशनल सक्सेसफुल तो है ही, लेकिन हम कहें कि हमने इतना एंजॉय किया लाइफ में कि हमें कोई रिग्रेट्स नहीं है कि तो मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ और बहुत पैसे खर्च करना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग विद मी, जो कोई ले जा नहीं पाता. तो ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी बना दी या पैसे इन्वेस्ट कर दिए वो फैमिली और किड्स वगैरह उनके लिए, और बाकी लेकिन मैं अपने सारे पैसे उसके बाद जो बचेंगे मेरे लिए वो मैं खर्च करके ही जाना चाहता हूँ. That's really great. That's really great, sir. I think ये क्लू तो हम सारे के सारे ले ही सकते हैं. एंड बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट बैंकेबल टॉक्स, जो हम कहते हैं कि इसका टॉक्स का पर्पस ही यही है कि हम रिलेट कर पाए, हम इनको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए. और जैसी कंपनी होती है, जैसे थॉट्स होते हैं, अल्टीमेटली आपके एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में जाते हैं, आपकी ट्रेजेक्टरी भी वैसे की वैसी चेंज हो जाती है. सो आई एम श्योर सबने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, कुछ ना कुछ वो लेकर जाएंगे आज साथ में, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि एवरी सैटरडे हम ROI की जगह पे ROTI, रोटी की बात करते हैं, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड. सो एवरीबडी हैज इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम टुडे इन द मॉर्निंग एंड स्पेशल थैंक्स टू यू. यू हैव गिवन लॉट ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम. बट बिलीव यू मी, इतने सारे लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंज आपने कर दिया. तो आई थिंक यू गॉट द बेस्ट ROTI, आई वुड से. So thank you again, and thank you everybody for listening so patiently and giving a lot of your time. Thank you Navneet for inviting Shailendra ji, and so enjoy your weekend, stay bankable. Photo click karo. Yeah, I would like to add one thing. Yesterday I had an experience. एक बड़ी अच्छी चीज मैं सब बैंक के दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. I had an opportunity to meet the new member Anuj Sharma in his office yesterday. Me and Navneet went there. उन्होंने बड़ा अच्छा एक चीज बताई, मैं सब बैंक के मेंबर्स को बोलना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि आपको पता है मुझे बैंक की सबसे अच्छी क्या चीज लगती है. तो आई वाज थिंकिंग, क्योंकि हमारे मन में तो बहुत सारी चीजें कि हाँ हमने ये अच्छा किया है. उसने कहा मुझे ना बैंक का लोगो बहुत पसंद आता है. तो और वो लोगो क्यों पसंद आता है, वो इसलिए पसंद आता, कहता जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा जैसे कि ये क्राउन है, मैं अपने सिर पे ये ताज पहनूंगा और मेरे साथ पावर ऑफ पीपल है, जो ऊपर लोग बने हैं. और मैंने उस पर्सपेक्टिव से तो देखा तो मुझे भी लगा कि यस ये तो क्राउन की शेप ले रहा है, और अगर इफ वी कैन हैव अ पावर ऑफ पीपल ऑन आवर हेड, दैट वी कैन मूव अहेड. दैट इज बैंक एंड दैट इज बैंकेबल. थैंक यू वेरी मच. यस एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया आपने बात बोली. और वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू ऑल द लिसनर्स एंड जसप्रीत जी, आयुषी जी एंड नवनीत जी एंड अदर मेंबर्स फॉर गिविंग me the opportunity. Thank you very much. Thank you sir. Thank you very much. Thank you. I've taken the picture. So thank you, sir. Thank you so much. So enjoy your weekend. Live life to the fullest, right? Start living it from today. Thank you so much. Yeah.